So today's lecture, the whole lecture will be spending onto the joints. To be frank, we have got nothing much to do into the joints. Probably only two more types of joints are left, like outer joint and self joint. Now this is something to be discussed. So sir, what we are going to learn till the end of the session? So what we are going to learn for 2 hours? As I said that I will start with the joints. We will talk about like outer joints, practical कैसे करना है. We will see the basic syntax, and once we finish with the basic syntax, then we will go ahead and we will try to see how we can do the combination. So हम लोग joins और group by का कैसे combination कर सकते हैं. Instead of 2 tables, अगर मुझको 3 tables या 4 tables या 5 tables के ऊपर join करना है, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं. तो this kind of, as I told you yesterday, we will start with some absolute basics, or slowly we will go and we will try to make it more and more complicated. I know that जो कल असाइनमेंट मैंने आपको दिए थे उसमें से ज्यादा असाइनमेंट आप लोग नहीं कर पाए होंगे, बिकॉज बिकॉज हम लोगों ने जो प्रैक्टिस किया था दैट वाज लाइक वेरी मच primitive level. But I'm very sure at the end of this session you will be having the all necessary knowledge of the joins, and if you are like having good English to understand that query problem statement, you will be definitely able to what is that, crack all those questions. So still there are no questions, so I'm just going ahead. And my first question to you is that yesterday I given you assignment that I want to print all employees and then corresponding department, and if the employee is not in any department, then I want to print null in front of that. And I ask you, can you write a typical normal pseudo code for that? That was my question. So have you done that? Can you please tell me the logic now? I'm very sure कि आप लोगों ने ये पेपर वर्क कर लिया होगा and now you are comfortable. So who is there? So Rohit has written the complete C programming code. Rohit, clap for you. Chalo. See now, pseudo code is something always pseudo code. Now, when you have done that and practically you have seen the result, then definitely whatever you are doing is done is correct. Yes. What I see is that the logic that you have written. कहाँ पर गया? किसका logic? So Rohit, your logic is valid. आपने प्राइवेटली मुझको क्यों डाल दिया है? अच्छा, बाकी लोगों को पता ना चले, सीक्रेट लॉजिक है. ओके, ठीक है, कोई बात नहीं. Naneshwar has also written a logic, that is also fine. Correct. Not able to solve. No, that is not really expected कि not able to solve. हम लोग नॉर्मल प्रोग्रामिंग लॉजिक की बात करते हैं, और मैंने आपको बोला था कि आपको सिंटैक्स नहीं भी आएगा तो भी चलेगा. अब प्रॉब्लम ये है, जिन लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश की लेकिन सॉल्व नहीं कर पाए, डोंट वरी, आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. मैं करके दिखाता हूँ. जिन लोगों ने कोशिश ही नहीं की है, आई एम वेरी श्योर दे आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड. मैं फिर से बता रहा हूं, जिन जिन लोगों ने सचमुच सर हमने कोशिश की लेकिन हम लोग नहीं कर पाए, कुछ लोगों ने कोशिश की, उनका हो गया, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, दे विल अंडरस्टैंड. जिन लोगों ने कोशिश की, सर वी स्पेंड हाफ एन आवर, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 50 मिनट्स ऑन दैट, बट वी कुड नॉट सॉल्व दैट. हम लोगों ने लॉजिक लगाने की कोशिश की लेकिन हम लोग नहीं लगा पाए. तो डोंट वरी, आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा. ऐसे कुछ महान लोग होंगे कि जिन्होंने, सर ने दिया ना असाइनमेंट, अब सर देख लेंगे, कल सॉल्व कर लेंगे, वो उनको जरूरत है. अगर वो जिस इस कैटेगरी के जो लोग रहेंगे, वैसे बहुत सारे इंजीनियर्स इसी कैटेगरी के रहते हैं. आई एम होपिंग कि आपकी बैच में नहीं होंगे, बट अगर आप लोग इस कैटेगरी में हो, देन डेफिनेटली इट विल ट्रबल अ लॉट. लेट मी टेल यू माय लॉजिक, हाउ आई वुड हैव डन दैट. बाय द वे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाज क्लियर टू एवरीवन, राइट? व्हाट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट? द प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाज दैट कि मुझको सारे एम्प्लॉयज के नाम प्रिंट करने, करस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट के नाम प्रिंट करने, और अगर एम्प्लॉय की करस्पॉन्डिंग आपको डिपार्टमेंट नहीं मिल रहा है तो वो डिपार्टमेंट वहां पर मुझको नल प्रिंट करना है. दैट वाज माय काइंड ऑफ अ लॉजिक. एंड इफ दैट वाज अ लॉजिक, इफ दैट वाज अ लॉजिक, आई एम जस्ट गोइंग अहेड. जो लॉजिक हम लोगों ने यहां पर लिखा था, सेम लॉजिक आई विल बी राइटिंग इट ओवर हियर एज वेल. द सेम लॉजिक आई विल बी राइटिंग ओवर हियर एज वेल. सो नथिंग मच. तो सर इतना ही लॉजिक है? नहीं, उतना ही लॉजिक नहीं है. आपको पता है इन दिस यहाँ पर क्या होता है, कुछ एलिमेंट प्रिंट नहीं हो रहे. यस, नो प्रॉब्लम. तो मैं काम कर रहा हूँ. व्हाट आई विल डू इज दैट I'll take up a flag there. I'll take a flag there. So I'm just giving a name of a flag. Let's say that my flag is something called as a found flag. And initially I say that it is false.
आई सेड दैट इट इज फॉल्स। सो फॉल्स क्यों? बिकॉज मुझको इस एम्प्लॉय के करस्पॉन्डिंग कोई भी डिपार्टमेंट नहीं मिला है, इसलिए मुझको इस एम्प्लॉय के करस्पॉन्डिंग कोई भी डिपार्टमेंट नहीं मिला है, तो आई एम जस्ट मेकिंग इट इक्वल टू फॉल्स। कोई बात नहीं। बट सर इफ यू फाउंड इट, सो जो इफ का कंडीशन मैंने लगाया था, इनसाइड इफ कंडीशन आई सिंपली से दैट फाउंड इज इक्वल टू ट्रू। फाउंड इज इक्वल टू ट्रू। सो जैसे ही एम्प्लॉय के करस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट मिल जाता है, ये कंडीशन जैसे ही मैच हो जाता है, आई एम जस्ट सेइंग दैट इस एम्प्लॉय के करस्पॉन्डिंग मुझको डिपार्टमेंट मिल गया, इस एम्प्लॉय के करस्पॉन्डिंग मुझको डिपार्टमेंट मिल गया। दैट्स इट। अब ऑब्वियसली यू फाइंड दैट डिपार्टमेंट नंबर। सो पहला एम्प्लॉय आपका कौन सा है? ये पहला एम्प्लॉय आपका कौन सा था? अमित। ये अमित के करस्पॉन्डिंग यू विल फाइंड दैट यू आर गेटिंग द डिपार्टमेंट, सो ऑब्वियसली फाउंड इज इक्वल टू ट्रू होने वाला है। बाद में दूसरा कौन था? ये दूसरा राहुल था। राहुल के करस्पॉन्डिंग भी आपको डिपार्टमेंट मिलने वाला है, डिपार्टमेंट नंबर 10, उसके लिए भी फाउंड इज इक्वल टू ट्रू था। अब कौन अमित कौन राहुल, ऐसे क्वेश्चन आपके पास नहीं होंगे, आई एम होपिंग सो। आप लोगों को कल का कोड आपको पता है, कल का डेटा भी आपको पता है, और वही डेटा मैं आज भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो आई एम सेइंग दैट अमित के करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पर डिपार्टमेंट मिल रहा है, तो कंडीशन इज ट्रू, फाउंड इज इक्वल टू ट्रू हो गया। राहुल के करस्पॉन्डिंग भी पहले रिकॉर्ड में उसको मिल गया, फाउंड इज इक्वल टू ट्रू हो गया, करेक्ट। नीलेश के करस्पॉन्डिंग भी यहाँ पर एक एम्प्लॉय मिल गया, वहां पर भी ट्रू हो गया। अब ओनली प्रॉब्लम अभी नितिन के साथ देखो क्या प्रॉब्लम हो रहा है। नितिन का डिपार्टमेंट नंबर है 50, बट अनफॉर्चुनेटली दिस 50 यू आर गोइंग थ्रू ऑल डिपार्टमेंट्स। आपने क्या किया? 50 के लिए यू स्टार्टेड विथ फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स, एंड फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स, यू गॉन थ्रू ऑल 4 डिपार्टमेंट्स। इवन तो यू वेंट फॉर ऑल 4 डिपार्टमेंट, कहीं पर भी वो फाउंड मैच नहीं हो रहा है, ये कहीं पर भी फाउंड मैच नहीं हो रहा है, वो मैच नहीं हो रहा है। तो सर ऐसे वक्त में हम लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं, अगर एक में जगह पे नहीं मिला, it only means that if found is equal to false. What is the meaning of this? A found is equal to false, इसका मतलब क्या है? इन शॉर्ट, आपने कोई भी डिपार्टमेंट उसका प्रिंट नहीं किया है, और अगर कोई भी डिपार्टमेंट प्रिंट नहीं किया है, उसकी करस्पॉन्डिंग कोई मैच नहीं हुआ है, व्हाई डोंट यू गो अहेड, यू प्रिंट वो जो एम्प्लॉय था, उसका नेम प्रिंट कर दो, जो एम्प्लॉय था उसका नेम प्रिंट कर दो, एंड करस्पॉन्डिंग उसके करस्पॉन्डिंग null print कर दो। That's it. That is the simple stuff. I was expecting you people to do that. मैंने क्या कहा? हम लोगों ने हर एक एम्प्लॉय के लिए डिपार्टमेंट फाउंड को हम लोगों ने पहले फॉल्स कर दिया, और उसके बाद में फॉर ईच डिपार्टमेंट हम लोग हर एक एम्प्लॉय के लिए चेक कर रहे हैं। जितने चारों डिपार्टमेंट है, हम लोग चारों डिपार्टमेंट के थ्रू जाके चेक कर रहे हैं। जहां कहीं पर भी मैच हो रहा है, हम लोग कह रहे हैं फाउंड इज इक्वल टू ट्रू। लेकिन अगर कहीं पर भी मैच नहीं हुआ, तो चारों के चारों डिपार्टमेंट में से एक भी डिपार्टमेंट में मैच नहीं हुआ, सो कमिंग आउट ऑफ द इनर लूप हम लोग चेक कर रहे हैं, यार फाउंड इज स्टिल इक्वल टू फॉल्स। इतना इसका मतलब है अभी तक उसको ये मिला ही नहीं है। अच्छा, अभी तक मिला ही नहीं है, कोई बात नहीं है। इन दिस पर्टिकुलर केस आई सिंपली से दैट प्रिंट name and corresponding department, you make it equal to null. Now is it clear? जिन जिन लोगों ने, मैंने कहा ना, जिन लोगों ने थोड़ी बहुत कोशिश की थी, उनको समझ में आना चाहिए। देयर इज नथिंग फैंसी अबाउट दैट, एंड इफ यू स्टिल फाइंड इट फैंसी, गो अहेड, राइट द कोड, यू विल अंडरस्टैंड दैट। तो वैसे तो सर ये आना बहुत जरूरी है क्या? अच्छी चीज ये है कि डेटाबेस के लिए आना जरूरी नहीं है। अच्छी चीज ये है, डेटाबेस के लिए आना जरूरी नहीं है, क्योंकि डेटाबेस में आपको लूप नहीं लिखने हैं, ये लूप ऑलरेडी डेटाबेस के लोगों ने लिख के रखे हुए हैं। आई रिपीट वंस अगेन, डेटाबेस के लोगों ने ऑलरेडी ये लूप्स लिख के रखे हुए हैं, तो आपको अलग से एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं है। सो कल हम लोग बात कर रहे थे, एज फार एज वेन डायग्राम इज कंसर्न, हम लोग बात कर रहे थे, ए वी आर लेट्स से डिपार्टमेंट, वी कैन से वी आर लाइक एम्प्लॉइज। मैं थोड़ा सा डायग्राम उल्टा ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं लेफ्ट हैंड साइड में एम्प्लॉइज ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं राइट हैंड साइड में डिपार्टमेंट्स ड्रॉ कर रहा हूँ। डायग्राम मैंने सिर्फ उल्टा ड्रॉ किया आज। एंड देन व्हाट आई एम सेइंग इज दैट एम्प्लॉइज के अंदर टोटल 5 एम्प्लॉइज है, डिपार्टमेंट्स के अंदर टोटल 4 डिपार्टमेंट है, दोनों में कंबाइंड 3 डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी रिक्वायरमेंट ये थी कि ये जो कंबाइंड है वो तो डिस्प्ले होने ही चाहिए, जो तो कंबाइंड है वो तो डिस्प्ले होने ही चाहिए। बट इसके अलावा जो एक्स्ट्रा 2 बचे थे, इसके अलावा जो 2 एक्स्ट्रा बचे हुए थे,
यहाँ पर हम लोग क्या बचे, इसके 2 एक्स्ट्रा बच गए, ये जो 2 एक्स्ट्रा बचे थे मुझको ये भी डिस्प्ले करने हैं, वो आपको वो भी डिस्प्ले करने हैं। दिस वाज माय रिक्वायरमेंट, this was my requirement, and I said that yes, this requirement can be fulfilled in in databases using something called as a left joins. Is something called as a left join, or you can call it as a left outer join. So left join क्यों? क्योंकि जो मैंने अभी डायग्राम ड्रॉ किया है, डायग्राम के हिसाब से जो लेफ्ट साइड वाले जो एक्स्ट्रा रिकॉर्ड्स हैं, इंटरसेक्शन तो आपको दिखाना ही है, इंटरसेक्शन तो आपको दिखाना ही है, लेकिन इंटरसेक्शन के साथ साथ जो लेफ्ट साइड में जो एक्स्ट्रा रिकॉर्ड्स है मुझको वो भी दिखाने हैं, एंड दैट इज द रीजन आई एम कॉलिंग इट एज अ लेफ्ट जॉइन। तो सर ये लेफ्ट जॉइन हम लोग कैसे करेंगे, ये लेफ्ट जॉइन हम लोग कैसे करेंगे? आई सेड दैट राइटिंग क्वेरी इज वेरी सिंपल। जिन लोगों को ऊपर का लूप समझ में आया है अच्छी बात है, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि लेफ्ट जॉइन इंटरनली कैसे काम करता है। बट अगर सर आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट इंटरनल्स, you just tell me how to write a query. Writing query is as easy as writing an inner join. So you go ahead and you start saying that a we are going to say select, we are going to say select e dot ename, e dot ename, d dot dname, e dot ename, d dot dname, and then you are saying that from employees, from employees e, from employees e, and I'm using a something word left outer join, left outer join, departments d, departments d, and your condition still remains same. What is your condition? Condition you write it after e keyword, e dot dptno is equal to d dot dptno. So again nothing great, जो आप लोगों ने ऊपर कंडीशन लगाई थी everything remains same, only thing you are changing your keyword. And what is your keyword change? Now your keyword is left outer join, लेफ्ट आउटर जॉइन। तो सर इसमें से लेफ्ट कौन सा और राइट कौन सा? जॉइन कीवर्ड के जो पहले आया था, लिसन केयरफुली, जॉइन कीवर्ड के जो पहले आया था उसको कहा जाएगा लेफ्ट, जॉइन कीवर्ड के बाद में जो आया था उसको कहा जाएगा राइट। जॉइन कीवर्ड के जो पहले आया था उसको कहा जाएगा लेफ्ट, जॉइन कीवर्ड के जो बाद में आया था उसको कहा जाएगा राइट। ऐसा मत कहना सर आपने डायग्राम में इसको लेफ्ट में ड्रॉ किया है, नहीं ये डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये जॉइन कीवर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू। फिर से एक बार, जॉइन कीवर्ड के जो पहले आएगा दिस टेबल, ये जो टेबल आपको जॉइन कीवर्ड के पहले दिखाई दे रहा है, दिस कीवर्ड आई कॉल इट एज अ, जो कीवर्ड आपको इसके पहले दिखाई दे रहा है इसको हम लोग कहेंगे लेफ्ट, इसको हम लोग कहेंगे लेफ्ट। और जो कीवर्ड जो टेबल हमको लेफ्ट के जॉइन के बाद में दिखाई दे रहा है उसको हम लोग कहेंगे राइट, उसको हम लोग कहेंगे राइट। तो सर ये लेफ्ट जॉइन है या लेफ्ट आउटर जॉइन है? प्लीज नोट दैट इसको हम लोग इन जनरल कहते हैं आउटर जॉइंस, इसको हम लोग कहते हैं आउटर जॉइन। इनर जॉइन वो होता है जो सिर्फ इंटरसेक्शन प्रिंट करता है। सो जब भी आप लोग सिर्फ इंटरसेक्शन के ऊपर फोकस कर रहे हो देन इट इज कॉल्ड एज ए इनर जॉइन। मोमेंट यू से दैट सर मुझको इंटरसेक्शन के बाहर का भी लेना है, मोमेंट यू से दैट कि मुझको इंटरसेक्शन के बाहर का भी लेना है, सो आउट ऑफ द इंटरसेक्शन, इसलिए उसको कहा जाता है आउटर जॉइन। लेकिन सर अब ये बाहर वाला, लेकिन कौन सा बाहर वाला, लेफ्ट साइड वाले बाहर वाला या फिर राइट वाला बाहर वाला? हमको कौन सा वाला? ये मुझको लेफ्ट साइड वाला बाहर वाला चाहिए। सो वट एवर एक्स्ट्रा इंटरसेक्शन के बाहर जो भी एक्स्ट्रा है लेफ्ट साइड में वो मुझको चाहिए, इसलिए इस जॉइन को हम लोग कहते हैं लेफ्ट आउटर जॉइन। आई रिपीट वंस अगेन, इंटरसेक्शन वो होता है जहां पर आपको दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों का कंबाइंड डिस्प्ले होता है, इसलिए उसको हम लोग हमेशा कहते हैं ये इनर जॉइन है, इसको हम लोग हमेशा कहते हैं ये इनर जॉइन है, ये हमेशा कहते हैं। यहाँ पर कल जो मैंने आपको इंटरसेक्शन का कोड दिखाया था, इंटरसेक्शन का कोड दिखाया था, इनर जॉइन का कोड दिखाया था, वहां पर हम लोगों ने सिर्फ इनर जॉइन क्यों कहा था? क्योंकि दोनों सेट का जो कॉमन इनर इंटरसेक्शन पोर्शन है इसलिए उसका नाम था इनर जॉइन। आज मैं क्या कह रहा हूं, मुझको इंटरसेक्शन वाला पोर्शन चाहिए बट इंटरसेक्शन के पोर्शन के बाहर वाला कुछ चाहिए, बाहर वाला कुछ चाहिए, इसलिए आउटर जॉइन है। लेकिन बाहर वाला कौन सी तरफ का, लेफ्ट की तरफ का या राइट की तरफ का? मैंने कहा लेफ्ट की तरफ का, दैट्स व्हाई दिस जॉइन is called as a left outer join. I hope Amit and Amruta, the word outer is clear. Why outer word come over here? Left outer join. Correct?
Sir, as far as syntax is concerned, outer keyword is optional. Please note, as far as syntax is concerned, आपने outer keyword लिखा तो भी चलेगा, आपने outer keyword नहीं लिखा तो भी चलेगा. Choice is yours. So every time you are writing a left join is nothing but left outer join. Left join is nothing but left outer join. Nothing much to explain there. सर ये काम करेगा क्या? 100% काम करेगा. क्यों नहीं करेगा? So if you are that interested in, let us just go back and let us think of writing it over here. तो पहले मैं यहां पर लिखता हूं. कल हम लोग जो दिखा था, हम लोगों ने पहले देखा था काइंड ऑफ क्रॉस जॉइन, फिर हम लोगों ने दूसरा देखा था समथिंग कॉल्ड एज अ इनर जॉइन, और आज जो हम देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट जॉइन कहो या फिर लेफ्ट आउटर जॉइन कहो. वैसे वो आउटर जॉइन के कैटेगरी में आता है, इसलिए मैं उसको एक्सप्लिसिटली कहूंगा that it is a left outer join. And how do I write a query for that? Already मैंने query लिखा हुआ है. Select e.ename d.dname from dname from emp is e. Very good. Left outer join. आगे departments D on join condition e dot dptno is equal to e dot dptno. That's it. We have completed this, and now I want to check whether it is working or not. Obviously ये चेक करने के लिए मुझको पहले MySQL में लॉगिन किया करना पड़ेगा. आई एम वेरी श्योर यू पीपल आर ऑलरेडी रेडी. अपने ऑलरेडी लॉगिन करके आप लोग बैठे होंगे एंड यू आर वेटिंग कि हम लोग कब शुरू करेंगे, कोडिंग करना शुरू करेंगे, कब हम लोग ज्वाइन पढ़ना शुरू करेंगे. सो यू आर वेलकम एंड दिस इज व्हाट आंसर इज. हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? हाँ, मैं डर गया ना. E dot employee number is equal to D dot employee number. Thank God, मैं टेंशन में आ गया था. Condition I have given wrong, and then it is showing me something like Cartesian product. Okay, now this is correct. And yes, so Amit is into the dev department, Rahul is into the dev department, Nilesh is into the QA department, Nitin, not in any department, null, and Sarang is not in any department, null. Why don't you try this? And you have any questions, why don't you ask that? Chalo, go ahead. I'm hoping that you people are ready. And if anything is not clear, please do ask. See, it is very easy. Especially इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुझको पता है कि आप में से कुछ लोग होंगे, बहुत सारे लोग बी कंप्यूटर और आईटी के लोग हैं, तो उन्होंने यहाँ पर ऑलरेडी पढ़ लिया था. बहुत सारे लोग आईटी के हैं तो उन्होंने कभी डेटाबेस पढ़ लिया होगा. बट हियर आई एम नॉट ट्राइंग टू टीच अ डेटाबेस, आई एम ट्राइंग टू टीच अ डेटाबेस फॉर द प्रोग्रामर्स. सो आपको लूप लिखने आते हैं, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू हाउ जॉइंस आर इंटरनली वर्किंग एटलीस्ट एट द बेसिक लेवल. Saurabh, what is the correction in the code? Correction in the code was I have written e.dptno is equal to e.dptno. I should have made it over d over there. So that was a kind of a typo mistake, and I have handled that. Right? No problem. Sham, if you really want to understand how it is working, why it is working, then you should not really focus over here. You should focus over here. So if you really want to know, सर वो internally क्या कर रहा है, सर ये कैसे आ रहा है, इसलिए मैं पढ़ाने की शुरुआत ही मैं उल्टी कर रहा हूँ. Please note that is the syntax of left outer join. So what is syntax of left outer join says? Syntax of left outer join simply says that कि जो कुछ भी intersection है, जो भी similar है, similar जो है उसके corresponding आपको employee का name भी मिलेगा, department का name भी मिलेगा, employee का नाम भी मिलेगा, department का नाम भी मिलेगा, employee का नाम भी मिलेगा, department का नाम भी मिलेगा. So that is clear. However, जिनके corresponding, जिन employees के corresponding डिपार्टमेंट नहीं है, जिन एम्प्लॉय के करस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट नहीं है, लिसन केयरफुली, जिस एम्प्लॉय के करस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट नहीं है, वहां पर अभी 50 नंबर का यहां पर डिपार्टमेंट ही नहीं है, तो वहां पर नल आ जाएगा. आई गेस श्याम यू अंडरस्टूड दैट कि नल क्यों आ रहा है. नल क्यों आ रहा है? क्योंकि नितिन और सारंग के करस्पॉन्डिंग यहां पर 50 नंबर का डिपार्टमेंट नहीं है, तो वहां पर नल आ रहा है.
जिन लोगों को पहले से डेटाबेस आ रहा है, प्लीज डेटाबेस के क्वेश्चंस जो आपको पहले से आ रहे हैं वो प्लीज अभी मत पूछना। अमित, आपने शायद पहले कहीं पर तो पढ़ा था, जो सिंटैक्स है ज्वाइन का, मैं वो सिंटैक्स पढ़ा रहा हूं। सो ज्वाइन सिंटैक्स फॉलोज ऑन कीवर्ड, ज्वाइन सिंटैक्स डजंट फॉलो वेयर कीवर्ड। तो जहां पर जो सिंटैक्स है वो फॉलो करना चाहिए। एम आई करेक्ट? राइट? आपने शायद कभी पहले बचपन में ज्वाइंस पढ़ा था, और शायद शायद तब किसी ने तो आपको वेयर क्लॉज से ज्वाइन पढ़ाया था। आई नो दैट, ये मैंने भी अपने बचपन में पढ़ा था। बट हियर आई एम ट्राइंग टू टेल यू, वॉट एवर इज सिक्वल स्टैंडर्ड, तो सिंटैक्स को चेंज मत करो। जो सिंटैक्स है वो है, और जो सिक्वल स्टैंडर्ड है वो है। लेट अस फॉलो द स्टैंडर्ड, लेट अस नॉट चैलेंज कि ऐसा क्यों है। जब हम लोग कहते हैं नो अमित, दैट इज अ सिंटैक्स ऑफ अ नल जॉइन, आउटर जॉइन। आउटर जॉइन का ये सिंटैक्स है, आउटर जॉइन का ये सिमेंटिक है। व्हाट इज सिमेंटिक ऑफ आउटर जॉइन? दैट जब कभी करस्पॉन्डिंग मैचिंग नहीं मिलेगा, वो नल प्रिंट करेगा, दैट्स इट। यू कैनॉट चेंज दैट फंक्शनलिटी। आई होप अमित आई मेड इट वेरी क्लियर। आपके पास कोई चॉइस नहीं है, जो मैच होगा वो होगा, जो मैच नहीं होगा उसके लिए नल प्रिंट करेगा। दैट इज हाउ आउटर जॉइन वर्क्स। यहां पर आप लोग ये समझो, प्लीज नोट दैट अमित, जब हम लोग खुद का कोड लिखते हैं, आपके खुद के कोड में आपके पास चॉइस है। ये आपका कोड है, ये हम लोगों ने लिखा हुआ कोड है। यहां पर नल प्रिंट करना है, यहां पर नल प्रिंट करना है या कुछ और प्रिंट करना है, ये मैं सोच सकता हूं, क्योंकि ये कोड मेरा है। जब हम लोग आरडीबीएमएस, क्या माइस्क्ल मैंने लिखा है, क्या ओरेकल मैंने लिखा है, एमएस सिक्वल मैंने लिखा है, क्या सिक्वल स्टैंडर्ड मैंने बनाया है, क्या मैं एनसी में हूं? बिल्कुल नहीं हूं। मैं एक आम इंसान हूं। अगर मैं एक आम इंसान हूं, तो जो कुछ भी इन बड़े बड़े लोगों ने बनाया है, दैट यू नीड टू फॉलो। अगर हमको कभी सर उनका बनाया हुआ मेरे को अच्छा नहीं लगता, डोंट यूज, मेक योर ओन। दैट इज वेरी सिंपल रूल, आई ऑलवेज कीप टेलिंग द पीपल, इट इज रेडीमेड। जो रेडीमेड है वो ले लो। राइट, दैट इज करेक्ट। दिस लाइक माइंड सेट, कि हमें कैसे सोचना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। यस हिमा, yes Himanshu, it was working like a cross join, because the condition was always true, and then it was taking all records, it was taking all records. Chalo, now if it is clear, now if it is clear, I'm just going a step ahead. If it is clear, I'm going a step ahead. एक क्वेश्चन किसी ने तो मुझको पूछा है, सर हमें कैसे पता चलेगा कि वो लेफ्ट ज्वाइन है या राइट ज्वाइन है? गिव मी सम टाइम, मैं आपको बताऊंगा लेफ्ट कैसे और राइट कैसे, मैं आपको बताता हूँ, गिव मी सम टाइम। लेकिन अब मैं नई रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ। मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है, मेरी रिक्वायरमेंट ये ऐसी है, ये जो एम्प्लॉइज है, अब मुझको क्या चाहिए, जो जो मैच हो रहा है। लिसन केयरफुली, मेरी रिक्वायरमेंट अभी भी वही है। अमित डेवलपमेंट है, डेवलपर है, तो मुझको अमित के करस्पॉन्डिंग डेव आना चाहिए। राहुल डेवलपर है, राहुल के करस्पॉन्डिंग डेव आना चाहिए। नीलेश क्यूए में है, उसके करस्पॉन्डिंग क्यूए आना चाहिए। लेकिन अब मेरी रिक्वायरमेंट ये नहीं है, मुझको नितिन और सारंग में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझको उन डिपार्टमेंट्स में इंटरेस्ट है जिन डिपार्टमेंट के अंदर कोई जिन डिपार्टमेंट के अंदर कोई एम्प्लॉइज नहीं है। प्लीज नोट, मैंने रिक्वायरमेंट अपना अलग चेंज कर दिया, एंड माय रिक्वायरमेंट इज समथिंग लाइक दिस। मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं और मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है, लेट्स दैट अगेन आई एम ड्राइंग समथिंग सिमिलर वे, one employee and one department. This is employees, this is departments. Please pay attention. This is employees, this is departments. What I'm trying to tell you is that there are three which are common. वैसे टोटल 5 एम्प्लॉइज थे, इसमें से अभी 2 रह गए। कौन से? नितिन और सारंग। टोटल 4 थे, इसमें से 2 डिपार्टमेंट रह गए जिनके अंदर कोई एम्प्लॉइज नहीं है। यस एब्सोल्युटली करेक्ट, वो 30 और 40 जो है उनके करस्पॉन्डिंग न लाने चाहिए। 30 और 40 की करस्पॉन्डिंग न लानी चाहिए। मतलब मुझको क्या डिस्प्ले करना है? मतलब डेफिनेटली इंटरसेक्शन डिस्प्ले करना है क्या? यस, इंटरसेक्शन तो डिस्प्ले करना ही है, नो डाउट ऑन दैट। बट अपार्ट फ्रॉम इंटरसेक्शन, अपार्ट फ्रॉम इंटरसेक्शन, जो भी एक्स्ट्रा है, ये जो भी एक्स्ट्रा है, ये भी मेरे को डिस्प्ले करने हैं। एंड दिस इज व्हाट माय रिक्वायरमेंट इज, दिस माय रिक्वायरमेंट इज। तो ऐसे वक्त में क्या करेंगे? अब मैं फिर से पूरा सी या सुडो कोड नहीं लिखने वाला हूं। दैट इज कॉमन सेंस, लूप को उल्टा सीधा करना है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट जो क्वेरी आपने थोड़ी देर पहले लिखी थी, वही क्वेरी फिर से लिखनी है, लेकिन अब हमें लेफ्ट आउटर ज्वाइन नहीं करना है, अब हमें राइट आउटर ज्वाइन करना है। तो सर ये राइट आउटर ज्वाइन कैसे लिखते हैं? कुछ नहीं, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं यहां से, और वहां पर जाके सिर्फ 1-2 वर्ड्स इधर से उधर चेंज करने वाला हूं।
बाकी कुछ भी चेंज नहीं करने वाला हूं. सो लाइक अ कॉपी, go there, say paste, and as you paste there, अब मैं क्या कह रहा हूं, मुझको एक्स्ट्रा किसके चाहिए, मुझको राइट वाले के एक्स्ट्रा चाहिए. अगर आपको राइट वाले के एक्स्ट्रा चाहिए, then you should not say left join, then you should not say left join, rather you should say right outer join, rather you should say right outer join. That's it, rest everything is same. Why don't you try the query? सी मैं कितना भी बताऊंगा आपको समझ में नहीं आने वाला है, बेटर करके देखो. सो यू ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड दैट ये जो अमित है, ये अमित प्रिंट हो रहा है, अमित है, अमित के पर करस्पॉन्डिंग आपको डेवलपर प्रिंट हो रहा है. राहुल है, उसके करस्पॉन्डिंग आपको डेवलपर प्रिंट हो रहा है. नीलेश के करस्पॉन्डिंग आपको क्यूए प्रिंट हो रहा है. लेकिन ये जो ऑप्स है, इसके करस्पॉन्डिंग कोई नहीं है, तो यहाँ पर नल आ रहा है और अकाउंट के करस्पॉन्डिंग नल आ रहा है. दिस इज समथिंग इट विल डू, इट इज समथिंग इट विल डू. तो चलो करके देखते हैं. यस डन, देयर इज नथिंग कॉम्प्लिकेटेड इनटू दैट. तो मैंने कहा ना, क्वेरी लिखना इससे आसान काम कुछ हो नहीं सकता. आप लोग हमेशा उन लोगों के बारे में सोचो जिन्होंने आरडीबीएमएस बनाया, जिन्होंने आरडीबीएमएस बनाया उन्होंने बहुत सारे पापड़ बेले होंगे. लेकिन हम लोग हम लोग रेडीमेड मिलता है तो भी हम लोग परेशान है, सर ये कैसे काम करता है करके. यू थिंक ऑफ इट, द पीपल हु हैव रिटन अ लॉजिक बिहाइंड इट कि ये क्या करेगा, कैसे करेगा, वगैरह वगैरह वगैरह. सो यू जस्ट गो बैक, you put it there, and here find that oh Amit is into the dev, Rahul is into the dev, Nilesh is into the QA, and ops डिपार्टमेंट के अंदर कोई नहीं है. वेरी गुड. और अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर कोई नहीं है. दैट्स इट, नथिंग मच टू बी डन. Amit, don't do the mathematics. That's why I say that you already know the answer. You already know the answer. ये जो कुछ भी है आपके सामने है. See the diagram. इट इज नॉट मैथमेटिक्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. हम लोग यहाँ पर 2+3 = 4 ऐसे कुछ करने के लिए हम लोग यहाँ पर नहीं आए हैं. द इट इज विजिबल इन फ्रंट ऑफ यू. ये जो 3 है वो मैच हो रहे हैं. यहाँ पर 1-to-1 मैचिंग नहीं हो रहा है, यहाँ पर 1-to-many रिलेशनशिप है. एंड सिंस इट इज 1-to-many रिलेशनशिप, अमित एंड राहुल दे आर मैचिंग टू द डेव, नीलेश इज मैचिंग टू द क्यूए. यहाँ के 2 बच गए, ये जो 2 बच गए डिपार्टमेंट्स के अंदर के, मैं वो 2 यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ. नथिंग मच. आई होप इट इज वेरी क्लियर. हम लोग यहाँ पर ये सेट थियरी चल रहा है, ये सेट थियरी चल रहा है, ये मैथमेटिक्स या अलजेब्रा का क्लास नहीं चल रहा है. सो लाइक सर अरिथमेटिक कैसे होगा, ये अरिथमेटिक हम लोग कर ही नहीं रहे. लेट अस नॉट मिक्स अप. करेक्ट. रुको जरा, देयर इज निखिल का कुछ क्वेश्चन है. दोनों प्रिंट करना होगा तो होल्ड ऑन निखिल, मैं बताता हूं. राइट. सो गोइंग बैक, तो जरा हम लोग पढ़ते हैं लेफ्ट जॉइन में हम लोगों ने क्या पढ़ा है और राइट जॉइन में हम लोगों ने क्या पढ़ा है. ए लेफ्ट जॉइन में लेफ्ट आउटर जॉइन is used to return matching rows from both the tables along with additional rows in a left table. Left table corresponding to the additional rows in left table, right table values will be always null. Left किसको कहेंगे, जो join कीवर्ड के पहले आएगा उसको left कहेंगे, जो join कीवर्ड के बाद में आएगा वो right कहेंगे. हाँ मेरे को पता है इंटरचेंज एंड ऑल दैट. कैन यू प्लीज होल्ड ऑन, मैं बता रहा हूं. मैं फिर से पूछ रहा हूं, क्या मुझको अपना स्पीड बढ़ाना चाहिए क्या? सो पीपल आर लाइक गोइंग अहेड. 2 मिनट रुको तो सही, मेरे को टॉपिक पूरा करने दो यार, टॉपिक पूरा करने दो. उसके बाद में अगर आपका टॉपिक बच जाता है, सर क्वेश्चन है तो सर हमारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, मैं आंसर दूंगा. करेक्ट. होल्ड ऑन, हैव पेशेंस, हैव पेशेंस. हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ेंगे और मैं पढ़ाऊंगा, आप चिंता मत करो. आई एम सेइंग दैट आउटर कीवर्ड इज ऑप्शनल. मैंने आपको बताया था आउटर कीवर्ड इज ऑप्शनल, मतलब हम लोग सिर्फ लेफ्ट ज्वाइन लिखेंगे, हम लोग सिर्फ लेफ्ट ज्वाइन लिखेंगे तो भी चल जाएगा. आप लोग करके देख सकते हो. राइट. आउटर कीवर्ड का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन के बाहर का हम लोग कुछ तो ले रहे हैं, ये हम लोग बता रहे हैं. राइट ज्वाइन, ये राइट ज्वाइन क्या करता है, राइट आउटर ज्वाइन इज यूज्ड टू रिटर्न मैचिंग रोज फ्रॉम बोथ द टेबल along with the additional rows in a right table. Very good. Corresponding to the additional rows in a right table, left table values will be taken as null. Okay. And again I'm saying that outer keyword is optional. So learning left outer join and learning right outer join, it was actually very easy job. लेकिन जब मैंने ये ज्वाइन पहली बार पढ़ा था मैं खुद कंफ्यूज था, ये
सारे लोग ऐसे दो दो ज्वाइन क्यों दिए? लेफ्ट मतलब जो ज्वाइन टेबल से पहले आएगा उसको हम लोग लेफ्ट कहेंगे, जो ज्वाइन के बाद में आएगा हम उसको राइट करेंगे। तो अलग से राइट ज्वाइन की क्या जरूरत है? सीधा सीधा टेबल का पोजीशन चेंज कर लेते हैं। Please note that what I'm saying is that सीधा सीधा instead of this what you are looking for, यहाँ पर मुझको क्या चाहिए? यहाँ पर मुझको क्या चाहिए? मुझको इंटरसेक्शन चाहिए। Have a look at this. मुझको इंटरसेक्शन चाहिए एंड एक्स्ट्रा एम्प्लॉय चाहिए, एक्स्ट्रा एम्प्लॉय चाहिए, करेक्ट? यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, मुझको इंटरसेक्शन चाहिए और मुझको यहां पर एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट चाहिए। तो मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर एक टाइम में आप लोग क्या कह रहे हो कि इसको लेफ्ट करो, इसको आप लोग कह रहे हो राइट करो, और हम लोग कर रहे हैं, ये चल भी रहा है। लेकिन सर ये लेफ्ट और राइट करने की क्या जरूरत है? इंस्टेड ऑफ सेइंग लेफ्ट टू राइट, हैव अ लुक एट दिस, इंस्टेड ऑफ सेइंग लेफ्ट टू राइट मैं लेफ्ट ज्वाइन ही लिखूं, और ये जो ज्वाइन, ये जो डिपार्टमेंट था, इस डिपार्टमेंट को अगर मैं लेफ्ट में ले लूं और इसको अगर मैं राइट में ले लूं, इसको अगर मैं राइट में लूं, तो सर इसका आउटपुट कुछ अलग आएगा क्या? नहीं, इवन दिस विल गिव मी द सेम आउटपुट। व्हाट इज दैट? इन दिस पर्टिकुलर केस, इन दिस पर्टिकुलर केस व्हाट आउटपुट इट विल गिव मी? लेफ्ट साइड के जो डिपार्टमेंट एक्स्ट्रा, लिसन केयरफुली, ड्राइवर और ड्रिवन का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर ड्राइवर और ड्रिवन का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ज्वाइन के पहले, लिसन केयरफुली, ज्वाइन के पहले जो लेफ्ट साइड में आया था वो एक्स्ट्रा जो भी होंगे वो डिस्प्ले हो जाएंगे, वो एक्स्ट्रा डिस्प्ले हो जाएंगे। लेट मी जस्ट चेक दैट, इज इट वर्किंग, इज इट वर्किंग? यस, आई फाइंड दैट ए ज्वाइन कीवर्ड से पहले यहाँ पर डिपार्टमेंट्स आए थे, ए ज्वाइन कीवर्ड से पहले यहाँ पर डिपार्टमेंट आए थे। सो हियर आई एम एबल टू सी द एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट्स, आई एम एबल टू सी एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट। तो सर आपको ये कहना है क्या, जो चीज अभी हमने राइट ज्वाइन से की थी वही चीज हम लोग लेफ्ट ज्वाइन से भी कर सकते हैं? क्या मुझको ये कहना है क्या, जो चीज अभी हमने राइट ज्वाइन से की थी क्या हम लोग वही चीज लेफ्ट ज्वाइन से भी कर सकते हैं क्या? माय आंसर इज यस, आप लोग लेफ्ट ज्वाइन से भी कर सकते हो, but in that case you can interchange the table positions. In that case you can interchange the table position. Moment you are interchanging the table position, तो आप लोगों को अलग से राइट ज्वाइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एंड द सिमिलर लाइन, ऑन द सिमिलर लाइन, अगर मेरे पास राइट ज्वाइन है, अगर मेरे पास राइट ज्वाइन है, लिसन केयरफुली, अगर मेरे पास राइट ज्वाइन है, ये राइट ज्वाइन क्या करता है, जो राइट साइड में है उसके एक्स्ट्रा प्रिंट करता है, उसके एक्स्ट्रा प्रिंट करता है। सर अगर मान लो मैंने वापस से इसका सीक्वेंस बदल दिया, अब मैंने राइट साइड में किसको लिया है, मैंने राइट साइड में डिपार्ट किसको लिया है, एम्प्लॉइज को लिया है। अगर राइट साइड में एम्प्लॉइज को लिया है तो सर ये क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, इंटरसेक्शन प्रिंट करेगा, और जो एम्प्लॉइज एक्स्ट्रा है वो एम्प्लॉइज प्रिंट करेगा। इज इट सो? एब्सोल्युटली, करके देखो, यहां पर आपको दिख रहा है इवन दो इट इज राइट ज्वाइन, राइट साइड में यहां पर एम्प्लॉइज है, ये राइट साइड में यहां पर एम्प्लॉइज है, एंड सिंस राइट साइड में एम्प्लॉइज है तो फिर ये नितिन एंड सारंग जो एक्स्ट्रा एम्प्लॉइज है वो एक्स्ट्रा एम्प्लॉइज प्रिंट हो रहा है। दैट्स इट। अब अगेन नाउ स्टूपिड क्वेश्चन पीपल आस्क, तो सर मैं लेफ्ट ज्वाइन करूं या राइट ज्वाइन करूं? मेरा आंसर बहुत सिंपल है, तेरे को जो अच्छा लगता है वो कर, क्यों टेंशन ले रहा है? सर लेकिन लेफ्ट ज्वाइन फास्ट होता है, राइट ज्वाइन फास्ट होता है, दोनों इक्वली चलते हैं। सो एज फार एज स्पीड इज कंसर्न देयर इज नो प्रॉब्लम। सर मेरे को लेफ्ट ज्वाइन अच्छा लगता है, यूज दैट। सर मेरे को राइट ज्वाइन अच्छा लगता है, यूज दैट। हु इज स्टॉपिंग यू? आई होप आई हैव गिवन यू आंसर्स। तो सर अब ये मत पूछना सर इन लोगों ने दो क्यों बनाए, इट इज अ सेट थियरी यार, इट इज लाइक दैट कम फ्रॉम मैथमेटिक्स, समथिंग दैट इज कमिंग फ्रॉम अ मैथमेटिक्स, समथिंग दैट इज कमिंग फ्रॉम मैथमेटिक्स। द मैथमेटिक्स इज सेइंग दैट कि जो वेन डायग्राम में आपने लेफ्ट में किया है, वेन डायग्राम में आप लोग राइट में भी कर सकते हो। द वे यू ड्रॉ द डायग्राम, इट डिपेंड्स ऑन दैट, इट डिपेंड्स ऑन दैट। सो दैट इज द रीजन, जो मैथमेटिक्स से आया है वो उन्होंने बना के दिखाया है। मैथमेटिक्स में बहुत सारे ऐसे रूल्स है कॉल्ड एज सिमेट्री, सिमेट्री a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो वहां पर आप लोग ऐसे फालतू क्वेश्चन पूछते हो क्या, सर 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 होता है, तो 3 प्लस 2 भी 5 क्यों होता है? सर ऐसा नहीं होना चाहिए, ये दो दो हो गए, हम लोग कंफ्यूज हो गए। डू यू आस्क दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस? एंड आई एम वेरी श्योर इफ यू आर आस्किंग दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कुड नॉट बिकम इंजीनियर। नाउ यू आर, I hope you got my point. Correct? So these are features are available. Whether you like to use left join, use that. Whether you like
to use right join, use that. Whether you like to change the position of the table, use that. Up to you. You just draw the diagram and you take a decision कि मुझको क्या एक्सेस करना है. As far as कंसर्न सिर्फ किस बात का हो सकता है, परफॉर्मेंस का कंसर्न हो सकता है. सर आप हमको ये बताओ लेफ्ट जॉइन फास्ट होता है राइट जॉइन फास्ट होता है. उसका आंसर मैंने दे दिया कि दोनों जॉइंट्स का स्पीड इक्वल होता है एंड द इंप्लीमेंटेशन डिपेंड्स ऑन आरडीबीएमएस वेंडर. तो माइसिक्वल वालों ने अलग से अंदर इंप्लीमेंट किया होगा, ओरेकल वालों ने अलग से इंप्लीमेंट किया होगा. हु केयर्स, वी बॉदर अबाउट द आउटपुट. उन्होंने अंदर जो भी राडा किया होगा हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, राइट. बट सर मुझको इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मुझको एक स्टेप और आगे जाना है. सर मुझको लेफ्ट वाले भी चाहिए और मुझको राइट वाले भी चाहिए, तो मैं क्या करूं? सिर्फ लेफ्ट वाले लाने हैं तो मैं लेफ्ट जॉइन से ले सकता हूं, या फिर राइट वाले चाहिए या तो मैं राइट जॉइन से ले सकता हूं, या फिर लेफ्ट में टेबल की पोजीशन चेंज करके ला सकता हूं. ए विच एवर वे, दैट इज चॉइस इज योर्स. वो आप लोग कैसे भी कर लो, हु केयर्स. माय क्वेश्चन इज दैट व्हेन इट टाइम कम्स कि मुझको दोनों के एक्स्ट्रा चाहिए, तो मैं कैसे करूंगा? ओ दैट इज माय क्वेश्चन, दैट इज माय क्वेश्चन. एंड वेट, तो सर व्हाट एग्जैक्टली यू आर सेइंग? व्हाट एग्जैक्टली यू आर सेइंग? आई एम सेइंग दैट यहां पर लेफ्ट साइड में, अब मैं एज्यूम कर रहा हूं लेफ्ट साइड में वापस से मैंने एम्प्लॉइज लिखा है, वेरी गुड. राइट साइड में, राइट साइड में मैंने वापस से डिपार्टमेंट्स लिखा है, राइट साइड में मैंने वापस से डिपार्टमेंट्स लिखा है. दोनों के बीच में कॉमन 3 है. एक्स्ट्रा यहां पर 2 एम्प्लॉइज एक्स्ट्रा है, यहां पर 2 डिपार्टमेंट एक्स्ट्रा है, यहां पर 2 एम्प्लॉइज एक्स्ट्रा है, यहां पर 2 डिपार्टमेंट्स एक्स्ट्रा है. अब मैं क्या कह रहा हूं, जो दोनों में कॉमन है, ये जो दोनों में कॉमन है इंटरसेक्शन, ये तो मेरे को डिस्प्ले करनी ही है, नो डाउट ऑन दैट. ये तो मेरे को डिस्प्ले करनी ही है, नो डाउट ऑन दैट. बट एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम आई एम सेइंग दैट जो राइट साइड के जितने सारे एक्स्ट्रा है, राइट साइड के ये जो 2 एक्स्ट्रा है, ये भी मेरे को डिस्प्ले करने हैं. दिस इज ऑल्सो माई रिक्वायरमेंट, दिस इज ऑल्सो माई रिक्वायरमेंट. बट एट द सेम टाइम जो लेफ्ट साइड के जो एक्स्ट्रा है, ये लेफ्ट साइड के जो 2 एक्स्ट्रा है, वो भी मेरे को डिस्प्ले करने हैं. दिस इज ऑल्सो माई रिक्वायरमेंट. एंड नाउ द क्वेश्चन इज, सर ये मैं कैसे कर सकता हूं? ये मैं कैसे कर सकता हूं? आई सेड दैट दिस सॉर्ट ऑफ अ जॉइन इज कॉल्ड एज अ फुल आउटर जॉइन. तो फुल आउटर जॉइन में क्या होगा, जो दोनों के मैच होंगे, ये मैच हो रहे हैं, गुड. ये मैच हो रहे हैं, गुड. जो मैच हो रहे हैं दे आर गुड. ये 3 तो वैसे भी मैच हो रहे हैं. अब मैं क्या कह रहा हूं, जो इसके 2 एक्स्ट्रा है, ये 2 भी आने चाहिए, और इसके 2 जो एक्स्ट्रा है, ये 2 भी आने चाहिए. ऑब्वियसली ऑपरेशंस के करस्पॉन्डिंग, एक करस्पॉन्डिंग यहां पर न लाना चाहिए, अकाउंट्स के करस्पॉन्डिंग न लाना चाहिए, और नितिन के करस्पॉन्डिंग न लाना चाहिए, सारंग के करस्पॉन्डिंग न लाना चाहिए, क्योंकि उनका मैचिंग नहीं है. तो सर ये हम लोग कैसे करेंगे? माय आंसर इज प्रीटी सिंपल. दिस सॉर्ट ऑफ अ जॉइन you call it as a full outer join. This side of a join you call it as a full outer join, जिसमें हम लोग ये कर सकते हैं. बट तो सर एक काम करते हैं, आई विल जस्ट गो देयर एंड नाउ सिंस यू हैव टोल्ड मी दैट फुल आउटर जॉइन नाम का कुछ तो फंडा होता है, अब मेरे को बहुत अच्छा लगा. अब मैं जाता हूं यहां पर और मैं कहता हूं फुल आउटर जॉइन, एंड यू नो विथ क्या कहते हैं, विथ कॉन्फिडेंस, सॉरी विथ ओवर कॉन्फिडेंस, यू मस्ट बी रेडी. एक काम करता हूं यहां पर, लेट मी जस्ट चेंज इट टू द फुल कीवर्ड, सेइंग दैट नाउ इट इज अ फुल आउटर जॉइन वेयर आई एम गेटिंग द एक्स्ट्रा एम्प्लॉइज, where I'm getting the extra employees, where I'm getting the extra departments. ये मैं उठाता हूं, यहां से कॉपी करता हूं, और मैं यहां पर जाके पेस्ट करता हूं, और आओ एरर आता है. अब ये एरर क्यों आता है? बिकॉज, एक मिनट रुको जरा, तो सर आप गलत कंसेप्ट पढ़ा रहे हो. मैं कंसेप्ट गलत नहीं पढ़ा रहा हूं, कंसेप्ट सही है, लेकिन मैंने आपको कहा था आरडीबीएमएस टू आरडीबीएमएस थिंग्स गेट चेंज. तो ये जो कुछ भी मैं आपको बता रहा था, लिसन केयरफुली. द फुल आउटर जॉइन, please note, full outer join is not supported in MySQL RDBMS. However, yes, full outer join, अब जो सिंटैक्स आपने नीचे लिखा है ये गलत सिंटैक्स नहीं है, डेटाबेस गलत है. full outer join is supported in Oracle, it is supported in MS SQL and few other RDBMS also. तो वापस से एक बार, तो सर हमने जो कंसेप्ट पढ़ा है, सर कंसेप्ट गलत हो गया है क्या? बिल्कुल नहीं, कंसेप्ट सही था, कंसेप्ट सही था, लॉजिक भी सही था, इवन कीवर्ड भी सही था,
Only problem is that that keyword is not applicable for our MySQL RDBMS. And since it is not applicable for MySQL RDBMS, you cannot get that result. तो सर अब कोई दूसरा तरीका है क्या? कोई दूसरा तरीका है क्या? Yes, दूसरा तरीका है. I'm just going ahead. Let us read something from this. Full join is used to return matching rows from both the tables and additional rows from both the tables first. Corresponding to additional rows in left or right table, opposite table values will be taken as null. Okay, I understand that as well. However, full outer joins are not supported in MySQL, but can be simulated using something called as a set operators. Oh, something called as set operators. तो सर इसका मतलब ये होता है कि मुझको इसके लिए कुछ तो कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, और वो कंसेप्ट क्या होगा? वो कंसेप्ट होगा set operators concept. I need to learn some concept for that. It is called set operators concept. So what is that set operators concept? Listen carefully. अभी जो आपका आउटपुट आ रहा है, पहले क्वेरी का जो आउटपुट आ रहा है और जो दूसरे क्वेरी का आउटपुट आ रहा है, whatever you say, don't you think that ये जो आउटपुट है इट इज कॉम्पेटिबल विथ ईच अदर? दोनों में दो दो कॉलम है, दोनों में दो दो कॉलम है. ई नेम डी नेम, ई नेम डी नेम. आप लोग चाहे लेफ्ट जॉइन से करो, आप लोग चाहे राइट जॉइन से करो, आई डू नॉट बॉदर अबाउट इट. बट मैं क्या कह रहा हूं, तो मुझको मुझको इसका जो आउटपुट है, इसका आउटपुट मुझको इसके आउटपुट के साथ अगर कंबाइन करना है तो क्या हम लोग कर सकते हैं? Yes, my answer is yes, we can do that. And for that, MySQL come up with two operators. MySQL come up with two operators, two set operators. One set operator is called as a union, and second set operator is called as a union all. There are two set operators. One is a union, and second set operator, it is a union all. So what exactly it means? करके दिखाता हूं, टेंशन मत लो. तो मैं क्या बात कर रहा था? Let me just go back and I'm talking about something called as a set operators. और यहां पर मैं दो क्वेरीज की बात करने वाला हूं. मैं दो क्वेरीज की बात करने वाला हूं जिनके रिजल्ट सिमिलर आ रहे, सेम नहीं आ रहे, सिमिलर आ रहे. तो माय क्वेरी नंबर वन, सिलेक्ट ई डॉट ई नेम. प्लीज पे अटेंशन, करना मत, सिर्फ देखना अभी यहां पर. डी डॉट डी नेम फ्रॉम employees e, and I'm talking about it is left outer join. Outer keyword is optional, आपको पता है. Left outer join on e dot deptnum is equal to d dot deptnum. कोई मुझको बताएगा इसका आउटपुट क्या आएगा? फिर से एक बार, इसका आउटपुट क्या आएगा? यहां पर इंटरसेक्शन आएगा प्लस एक्स्ट्रा क्या आएंगे? यहां पर इंटरसेक्शन आ जाएगा प्लस एक्स्ट्रा क्या आएंगे? What extra you will be getting in this query? Yes, extra employees आपको extra आएंगे. That is correct. So intersection plus extra employees. Whatever you are saying is correct. If it is not clear, let us एक बार फिर से करके देखते हैं और एक बार फिर से वेरीफाई कर लेते हैं. Saying that, okay, जल्दबाजी में लिखना रह गया, जल्दबाजी में लिखना रह गया, कोई बात नहीं, हम लोग इसको ठीक कर लेंगे. लेफ्ट ज्वाइन एंड राइट ज्वाइन, हाँ, नो प्रॉब्लम. सो यहां पर मुझको जो एक्स्ट्रा वाले एम्प्लॉयज मिल रहे थे ये मेरे को दिख रहे. सो आई एम हैप्पी, एक्स्ट्रा वाले एम्प्लॉयज मिल गए. रुको जरा, आई एम राइटिंग अ सेकेंड क्वेरी. अगेन लेफ्ट ज्वाइन लिखना है या राइट ज्वाइन लिखना है, ये आपका चॉइस है. राइट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन लिखो, टेबल चेंज करो, या फिर राइट ज्वाइन लिखो, इट इज अप टू यू. मैं लिखने वाला हूं राइट ज्वाइन. कैन यू टेल मी यहां पर मुझको क्या मिलेगा? यहां पर मुझको क्या मिलेगा? यहां पर मुझको क्या मिलेगा? यस, इंटरसेक्शन तो मिलेगा प्लस एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट्स मिलेंगे. एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट मिलेंगे, ये रहे एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट्स. एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट, प्लीज नोट, दोनों के आउटपुट में कॉमन क्या है? दोनों के आउटपुट में कॉमन क्या है? जो आपका इंटरसेक्शन पार्ट है, जो आपका इंटरसेक्शन पार्ट है, इंटरसेक्शन पार्ट इज कॉमन इन बोथ द क्वेरीज. In this part, I'm getting extra employees. In this part, I'm getting extra departments. Something very important. ये जो दोनों queries है, इनके अंदर दो ही columns है, दो ही columns है. ये जो दोनों queries है, इनके अंदर दो ही column है. So दोनों का result एक दूसरे से compatible है.
वो इंपॉर्टेंट है। सर एक क्वेरी के रिजल्ट में 3 कॉलम आ रहे हैं, एक क्वेरी के रिजल्ट में 2 कॉलम आ रहे हैं, ऐसी उटपटांग हरकतें नहीं करते। सो आई एम सेइंग दैट दे आर कॉम्पेटिबल विद ईच अदर। अब मैं क्या कह रहा हूं, ये जो दोनों है, तुम ये पहली क्वेरी, सी इट केयरफुली, पे अटेंशन, डोंट डू। ये जो पहली क्वेरी है, ये मेरी पहली क्वेरी है, इसका आउटपुट, ये जो मेरी दूसरी क्वेरी है, इसका आउटपुट, इन दोनों आउटपुट को मुझको मर्ज करना है, एंड आई एम यूजिंग अ कीवर्ड कॉल्ड एज यूनियन कीवर्ड। सर ये मेरे को क्या देगा, ये मेरे को क्या देगा, जो कॉमन है वो एक ही बार देगा। हैव अ लुक एट दिस, जो कॉमन थे वो एक ही बार देगा, फिर आपके पास जो एक्स्ट्रा एम्प्लॉइज थे वो भी देगा, और जो एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट्स है वो भी देगा। सो नाउ यू कैन क्लैप फॉर योर सेल्फ, एंड दिस इज हाउ, ये फुल ज्वाइन नहीं है, लेकिन ये फुल ज्वाइन का सिमुलेशन है, विच कैन बी डन इन MySQL यूजिंग यूजिंग यूनियन ऑपरेटर, यूजिंग यूनियन ऑपरेटर। डोंट डू दैट, डोंट डू दैट, वेट फॉर अ मिनट, वेट फॉर अ मिनट। सर यही चीज अगर मैंने एक बार और की, आप लोगों ने नोट किया था, जो आपका इंटरसेक्शन था, जो आपका इंटरसेक्शन था वो एक ही बार आया था, जो इंटरसेक्शन था वो एक ही बार आया था। अब मैं क्या कह रहा हूं, एक और कीवर्ड है कॉल्ड एज यूनियन ऑल। तो ये यूनियन ऑल कीवर्ड क्या कर रहा है, ये यूनियन ऑल कीवर्ड क्या कर रहा है, दिस यूनियन ऑल कीवर्ड, टेक अ लुक एट दिस, ये आपका इंटरसेक्शन जो पार्ट है, वो इंटरसेक्शन पार्ट 2 बार दे रहा है, और ऑब्वियसली एक्स्ट्रा वाले ये भी दे रहा है, और एक्स्ट्रा वाले ये भी दे रहा है, एक्स्ट्रा वाले एम्प्लॉइज भी दे रहा है, और एक्स्ट्रा वाले डिपार्टमेंट भी दे रहा है। दिस इज सिंपल, व्हाट इज यू कॉल इट एज अ यूनियन ऑल ऑपरेटर। तो यूनियन ऑपरेटर and union all operator, what is difference? Difference is pretty simple. यूनियन ऑपरेटर में जो दोनों में कॉमन होता है उसको एक ही बार दिखाया जाता है, यूनियन ऑपरेटर में दो क्वेरी के रिजल्ट में जो कॉमन होता है उसको एक ही बार दिखाया जाता है। यूनियन ऑल में पहले क्वेरी के रिजल्ट को दूसरे क्वेरी का रिजल्ट अपेंड किया जाता है, सीधा सीधा अपेंड किया जाता है, वो ये नहीं चेक करता कौन सा कॉमन है कौन सा कॉमन नहीं है। सो वन यू कॉल्ड एज ए यूनियन, एंड सेकेंड वन यू कॉल्ड एज यूनियन ऑल। और ये जो पहला वाला जो आउटपुट है, ये पहला वाला जो आउटपुट है, यहां पर मैंने क्या बताया, यू गेट इंटरसेक्शन only once plus you get extra employees plus you get extra departments, very good। वहां पर you get intersection twice, intersection twice। In fact I'm saying that output of second query is appended to output of first query, that's it। this is how you are going to get the result। तो आपका इंटरसेक्शन आपको 2 बार रिपीट होने वाला है, नथिंग नथिंग स्पेशल दैट इज देयर। तो सर ये जो है ये क्या है, इसको हम लोग कह सकते हैं दिस इज नथिंग बट सिमुलेशन ऑफ फुल ज्वाइन, दिस इज नथिंग बट सिमुलेशन ऑफ द फुल ज्वाइन। आई एम जस्ट गोइंग वंस अगेन, मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, इफ इट स्टिल नॉट क्लियर प्लीज अंडरस्टैंड दैट। ये हम लोगों ने इंडिविजुअल क्वेरीज दिए थे, ये मेरी जो पहली क्वेरी थी, ये पहली क्वेरी के अंदर इट इज अ लेफ्ट ज्वाइन। सिंस माय फर्स्ट क्वेरी इज लेफ्ट ज्वाइन, सिंस माय फर्स्ट क्वेरी वाज लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट साइड का टेबल हमारे केस में लेफ्ट साइड का टेबल था एम्प्लॉइज। तो एम्प्लॉइज के अंदर जो एक्स्ट्रा थे वो प्रिंट हो रहे थे, इंटरसेक्शन तो प्रिंट हो ही रहा था, दैट इज आउट ऑफ क्वेश्चन। ये मेरा पहला। मेरी जो दूसरी क्वेरी थी दिस पार्ट। इन अ सेकेंड क्वेरी what I say is that I'm getting again intersection, I'm getting no doubt, but ये right join है, तो राइट साइड में जो डिपार्टमेंट्स एक्स्ट्रा थे वो डिपार्टमेंट्स के अंदर से एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट हम लोगों ने प्रिंट किए। ओके, दैट इज ऑल्सो गुड। अब मैं क्या कह रहा हूं, ये जो इंटरसेक्शन है, ये जो इंटरसेक्शन है, ये 2 बार नहीं प्रिंट करना है, मुझको इंटरसेक्शन एक बार चाहिए, एक्स्ट्रा वाले एम्प्लॉइज भी चाहिए, प्लस एक्स्ट्रा वाले डिपार्टमेंट भी चाहिए। इफ यू आर लुकिंग फॉर दैट, use union keyword। what union keyword does, union keyword ensures that दोनों में जो कॉमन है वो एक बार आ जाएगा, और फिर आपके एम्प्लॉइज के जितने एक्स्ट्रा थे, वो एम्प्लॉइज के एक्स्ट्रा एक बार आ जाएंगे, और प्लस आपके डिपार्टमेंट के जितने एक्स्ट्रा थे वो एक बार आ जाएंगे। दैट्स इट, दिस इज नथिंग बट यूनियन ऑपरेटर।
तो सर यूनियन ऑल ऑपरेटर क्या करता है? वो यूनियन ऑल ऑपरेटर क्या करता है? यूनियन ऑल ऑपरेटर पहले क्वेरी का जो आपका आउटपुट था, ये आपने नोट किया था, पहले क्वेरी का आउटपुट क्या था? 5 रोज, अमित, राहुल, नीलेश, नितिन और सारंग के करस्पॉन्डिंग नल। दूसरे इसको दूसरे क्वेरी का जो आउटपुट था, अमित, राहुल, नीलेश और नल नल ऑप्शन अकाउंट के करस्पॉन्डिंग, उनको सिर्फ अपेंड करता है। यू फाइंड दैट दिस इज आउटपुट ऑफ फर्स्ट क्वेरी, this is output of first query, and this is simply the output of the second query. It is output of the second query that sit, correct? तो जो duplicates है, ये जो duplicates है, मतलब intersection जो है, that intersection is getting repeated twice. This one I call it as a union all operator. तो सर MySQL में कितने सेट ऑपरेटर होते हैं? MySQL में 2 ही सेट ऑपरेटर होते हैं, एक होता है यूनियन और एक होता है यूनियन ऑल। अगेन पीपल कमिंग फ्रॉम ओरेकल बैकग्राउंड, वहां पर इंटरसेक्ट्स होते हैं और भी कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, सो डेफिनेटली यू कैन लर्न देम। बट MySQL में 2 ही सेट ऑपरेटर होते हैं, वन इज द यूनियन ऑपरेटर एंड सेकंड वन इज द यूनियन ऑल ऑपरेटर। लेट मी जस्ट रीड दिस, और उसके बाद में आपको जो क्वेश्चन पूछने आप लोग पूछो। Union operator is used to combine results of 2 queries. Very good. The common data is taken only once. It is used to simulate full outer join. Done. Union OR operator is used to combine results of 2 queries and common data will be repeated. इसके अलावा यहां पर कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है. It is that simple. I want you people to go ahead, try it on your machine, and meanwhile अब मेरा इनर ज्वाइन, सॉरी आउटर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन, फुल ज्वाइन और सेट ऑपरेटर, ऑल रिलेटेड कंसेप्ट मेरे खत्म हो चुके हैं। आपको इसके रिलेवेंट कुछ डाउट पूछने हैं, प्लीज आस्क, गो अहेड। चलो करके देखो, अच्छी बात है। आई होप जिन जिन लोगों को जितने सारे क्वेश्चन आए थे, आई हैव आंसर्ड ऑल ऑफ देम, सो इट विल बी रियली ग्रेट, यू नो, इफ कैन होल्ड ऑन। बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर जल्दी मिल जाएंगे, तो आप लोग भी कंफ्यूज नहीं होंगे और जो बाकी लोग बैठे हुए हैं वो लोग भी कंफ्यूज नहीं होंगे। मैंने आपको ये सब कुछ एक्सप्लेन किया, मैंने 2 बार रिपीट भी किया। इसके बाद में नाउ आई गेस दैट ऑल रिलेवेंट टॉपिक्स आर कवर्ड। अब इसके बारे में आपको आगे कुछ और जानना है, वैसे जानने के लिए और कुछ बचा नहीं है, but still you want to ask something, you are welcome for your questions. This above query is error in MySQL. वापस से ये मत कहना से एरर आ रहा है, मेरे को पता है एरर आ रहा है, मैंने ऊपर लिखा हुआ है। यूनियन कॉमन थिंग को ओवरराइट कर रहा है क्या? यहां पर मैं ओवरराइट नहीं कहूंगा, यहां पर मैं कह रहा हूं जो कॉमन है उसको एक बार ले रहा है। आई डोंट यूज द वर्ड ओवरराइट, राइट? चलो गुड। मैंने कहा ना जॉइंस इज वेरी सिंपल टॉपिक, आप लोग कैसे लिखते हो उसके ऊपर बहुत सारी चीज डिपेंड करती है। कैन वी कंबाइन रिजल्ट्स ऑफ मोर देन 2 क्वेरीज? कैन वी कंबाइन रिजल्ट्स ऑफ मोर देन 2 क्वेरीज? आंसर इज वेरी सिंपल। कैन वी डू द एडिशन ऑफ मोर देन 2 नंबर्स? हम लोग मल्टीपल नंबर्स का एडिशन कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन एट ए टाइम, रिमेंबर, एट ए टाइम 2 का ही एडिशन करना पड़ेगा। तो हम लोग मल्टीपल क्वेरीज के आउटपुट कनेक्ट कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, लेकिन एट ए टाइम 3 के आउटपुट नहीं कर सकते। सो पहला क्वेरी यूनियन कीवर्ड, दूसरा क्वेरी यूनियन कीवर्ड, तीसरा क्वेरी एंड देन सेमीकोलन, ऐसे करके आप लोग तीनों को ज्वाइन कर सकते हो। दैट इज पॉसिबल, दैट इज पॉसिबल। आई गेस जिसने भी क्वेश्चन पूछा था, आई गेस इट इज क्लियर। अदिति, आई होप दैट इज क्लियर। हम लोग मल्टीपल क्वेरीज के आउटपुट ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन वन एट ए टाइम। हम लोग एक यूनियन कीवर्ड में तीनों के नहीं ज्वाइन कर सकते। हम लोग जैसे लिखते हैं 2 + 3 + 4, प्लस साइन हम लोग 2 बार लगाते हैं, यहाँ पर हम लोग यूनियन साइन 2 बार लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट, अदर देन MySQL यूनियन ऑल नहीं होता क्या? हिमांशु, आई गेस यूनियन ऑल होता होगा, आई बिलीव इट इज देयर इन MS SQL। MS SQL में होता है आई गेस, ओरेकल में आई डोंट रिकॉल, होता होगा, आई एम वेरी श्योर। दैट्स इट। MySQL में होता है ये पक्का है, अभी हमने यूज करके देखा।
ज्ञानेश्वर, योर क्वेश्चन इज नॉट क्लियर. ऑन वर्सेस यूजिंग मतलब क्या होता है? कैन वी कंबाइन रिजल्ट ऑफ मल्टीपल टेबल्स? फैज, आई गेस आई हैव आंसर. अदिति को मैंने वही आंसर दिया था. मल्टीपल टेबल के रिजल्ट हम लोग कर सकते हैं यूजिंग मल्टीपल यूनियन कीवर्ड्स. ज्वाइन ऑन मल्टीपल टेबल्स दीपाली हम लोग पढ़ेंगे. पहले बेसिक ज्वाइन में एक बार पहले खत्म कर लो सारे कंसेप्ट, और उसके बाद में हम लोग एडवांस ज्वाइंस हम लोग अलग से पढ़ेंगे. पढ़ेंगे मतलब आज ही पढ़ेंगे, राइट? चलो, now since you people are clear with this, let me talk about the last type of join first. और एक काम करते हैं, it is already 7:07. What we will do is that we'll take a break for 10 minutes, and after the break we will talk about last type of join. जो self join kind of topic बचा हुआ है हम लोग उसको पढ़ेंगे. And once that self join is clear, once self join is clear, उसके बाद में हम लोग असाइनमेंट कुछ सॉल्व करेंगे कि मल्टीपल टेबल कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, फिर ग्रुप बाय और ज्वाइन कैसे यूज कर सकते हैं, फिर ज्वाइन के साथ ऑर्डर बाय या और कुछ कैसे यूज कर सकते हैं, फिर हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन विच विल हेल्प यू टू सॉल्व द असाइनमेंट्स, राइट? 10 मिनट्स ब्रेक. और बहुत कुछ बाकी है अमित, डोंट वरी. And we can continue further. What I was trying to discuss is nothing but, am I audible? Yes, sir, audible. Yeah, good. So Janvi, I got your question, and to be frank, Janvi's question is that drawing Venn diagram is compulsory. My answer is no. Venn diagram तो हम लोग सिर्फ concept समझने के लिए draw करते हैं. As you join company, no one bothers whether you are able to draw Venn diagram or not. What is important is that are you able to write a query or not. So writing query is always important, not at all whether you are able to draw the diagram or something like that. हम लोग ये beginner level पे करते हैं just to understand it. And Aneshwar, as I answered, using keyword हम लोग usually पढ़ाते नहीं है. I haven't seen as a part of your syllabus. So if you are really interested in like using keyword or like natural join or like some of the other concepts, we can take up at the end of the session, after the end of the session, not at the moment. Let us go as per the syllabus and as per the requirement. And I'm just going ahead talking about like a next requirement. And what is next requirement says? The next requirement is something like this. Let me just open it. Here you are able to see something. We are able to make, we have got like it's a symbol table. Take a look at this. We have got a single table. This table, single table, but I'm saying that I want to join the table with itself. You first ask the question, so why the hell you want to join a table with itself? क्यों टाइम पास कर रहे हो? नहीं, टाइम पास नहीं कर रहा हूं, मैं आपको रिक्वायरमेंट बता रहा हूं. And see the requirement clearly. Here you find that if I consider that these are kind of my employees, if I consider that these are kind of my managers, now you have a look at this. The Amit is one who is going to, who is a Amit ka manager kaun hai? 4 number. 4 number means this. So I'm saying that the Amit is reporting to Nitin. Okay, that is great. Nilesh ka manager kaun hai? Oh, again Nitin. So I'm saying that again Nilesh is also reporting to Nitin. Okay, that is good. What about Rahul? The Rahul, that is 3, he is reporting Rahul is reporting to number 3. So Rahul is going to report to Nilesh. Okay, that is good. The Rahul is reporting to Nilesh. All right. And then you also find that number 4 like a Nitin's manager is, let's say, 5, and Nitin's manager is 5. So Nitin is reporting to Sarang, and you find that वो सारंग का मैनेजर कौन है? सारंग का मैनेजर कोई नहीं है. तो सारंग इज नॉट रिपोर्टिंग टू एनीवन. तो अगर आपको इस कंपनी का हायरार्की देखना है, अगर आपको इस कंपनी का हायरार्की देखना है, तो मेरे को कुछ ऐसे लग रहा है कि सारंग इज वन जिसको हु इज नॉट रिपोर्टिंग टू एनीवन. सारंग के इमीडिएटली नीचे वी हैव गॉट लेट्स से नितिन, एंड देन नितिन को रिपोर्ट करने वाले 2 लोग हैं. समवेयर वन इज नीलेश and another is Amit. Okay, that is good. और नीलेश को रिपोर्ट करने वाला एक और है like Rahul. And I'm saying that yes, the relationships are built like this. अब यहां पर मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है,
कि मुझको ये देखना है कि कौन सा एम्प्लॉय कौन से एम्प्लॉय को रिपोर्ट कर रहा है. प्लीज नोट दैट एवरी एम्प्लॉय, everyone is an employee. Let it be the CEO of a company, let it be the technical director of the company, let it be the developer of a company, let it be the tester of a company, let it be the chairman of the company. Hey, whoever he is, हर एक जन एम्प्लॉई है. आई होप अमित यू आर गेटिंग द पॉइंट. करेक्ट. हर एक जन एम्प्लॉई है और हर एक एम्प्लॉय को कुछ ना कुछ तो कोड है. सो यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, अमित ये एक एम्प्लॉय है, अमित एक एम्प्लॉय है और अमित किसको किसको रिपोर्ट कर रहा है, वो जिसको रिपोर्ट कर रहा है उसका एम्प्लॉय नंबर 4 है. ओके. राहुल है, राहुल जिसको रिपोर्ट कर रहा है उसका एम्प्लॉय नंबर 3 है. और ये जो नीलेश है, नीलेश जिसको रिपोर्ट कर रहा है उसका एम्प्लॉय नंबर 4 है. बिकॉज अल्टीमेटली इवन दो इज अ मैनेजर, every manager is an employee, and I hope it is not a rocket science. Correct. And something similar, Nitin is reporting to number 5, and that number 5 himself is like a Sarang. Okay. And last one, Sarang is not reporting to anyone, so look like he's the supreme authority in that particular company. नाउ एज आई अंडरस्टूड दैट कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, मेरी रिक्वायरमेंट ये है मुझको हर एक एम्प्लॉय का नाम और करस्पॉन्डिंग वो जिसको रिपोर्ट कर रहा है उसका नाम प्रिंट करना है. ये मेरी रिक्वायरमेंट है. मेरी रिक्वायरमेंट ये है अमित किसको रिपोर्ट कर रहा है. कैन यू प्लीज अगेन टेल मी बाय लुकिंग एट दिस, अमित किसको रिपोर्ट कर रहा है. लुक एट दिस एंड टेल मी टू whom अमित इज रिपोर्टिंग. Yes, Amit is reporting to Nitin. Okay, that is great. To whom Rahul is reporting? Rahul is reporting to Nilesh. I hope आपको concept समझ में आ रहा है. पहले सी, जब तक डेटाबेस में आपको आउटपुट क्या आना चाहिए यही समझ में नहीं आता तब तक आप लोग क्वेरी लिखने की कोशिश मत करना. बहुत सारे लोग पागल लोग होते हैं, वो लोग हमेशा क्वेरी के पीछे पड़ जाते हैं. ये इसका क्वेरी कैसे लिखा, उसके क्वेरी कैसे लिखा. अगर आप लोग सिर्फ क्वेरी लिखना सीख रहे हो, take it granted, you are not learning database. You first learn the data, you first understand कि आउटपुट क्या आना चाहिए, and then you learn reverse. अच्छा, ये आउटपुट आने के लिए क्वेरी कैसे लिखनी चाहिए. प्लीज अंडरस्टैंड दैट. डोंट राइट अ क्वेरी. सर मैंने क्वेरी लिखा, अब व्हाट विल बी द आउटपुट. ये एमसीक्यू एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए अच्छा है. करेक्ट. यू अंडरस्टैंड दैट. Then next one, we have got like a Nilesh, and Nilesh, Amit, have a look at this. I really don't feel that anything great over there. This is Nilesh. ये जो है नीलेश का एम्प्लॉय नेम है, व्हाट इज दैट, एम्प्लॉय नेम है नीलेश और एम्प्लॉय नंबर है 3. नीलेश का मैनेजर, नीलेश का मैनेजर, ये नीलेश का मैनेजर है समथिंग लाइक से 4. ये 4 कौन है, वो नीलेश का मैनेजर 4 इज नथिंग बट नितिन. दिस इज व्हाट ऑल आई एम सेइंग. व्हाट इज सो ग्रेट अमित इनटू दिस. इसमें ना समझने वाली क्या बात है. आई एम जस्ट सेइंग दैट कि नीलेश इज रिपोर्टिंग टू नितिन एंड दैट नितिन, ये जो मैनेजर नंबर है वो यहां पर मैप हो रहा है. दैट्स इट. व्हाट इज सो ग्रेट. आई एम जस्ट गोइंग अहेड एंड आई एम सिंपली सेइंग दैट नीलेश इज Nilesh is reporting to Nitin, and you can just try out. I guess अमित अपने ट्राई करके देखना चाहिए, यू विल अंडरस्टैंड बेटर. सो ये सर नितिन है. सर नितिन, नितिन का एम्प्लॉय नंबर है 4. ओके, वेरी गुड. नितिन का एम्प्लॉय नंबर है 4, बट नितिन रिपोर्ट किसको कर रहा है, ओ ही इज रिपोर्टिंग टू 5. ए बट 5 नंबर का कौन एम्प्लॉय है, ये 5 नंबर का एम्प्लॉय कौन है. प्लीज गो थ्रू द टेबल, टेक अ लुक एट दिस. ओ 5 नंबर का एम्प्लॉय है मैनेजर, सॉरी सारंग. So I'm saying that he is reporting to Sarang, and that's it. I'm saying that. तो वैसे मेरे पास टेबल कितने हैं, वैसे मेरे पास टेबल एक ही है. लिसन केयरफुली, मेरे पास टेबल एक ही है, लेकिन ये समझ में आने के लिए, समझ में आने के लिए कि कौन एम्प्लॉय है और कौन मैनेजर है, मैंने एक टेबल को 2 जगह पे ड्रॉ किया. आई रिपीट वंस अगेन, ये समझ में आने के लिए कि कौन किसको ड्रॉ कर रहा है. क्योंकि अगर मैं डायग्राम ऐसे ड्रॉ करता, अगर मैं डायग्राम ऐसे ड्रॉ करता तो यूजुअली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. कंफ्यूज क्या हो जाते हैं, सर वो अमित है, वो अमित रिपोर्ट कर रहा है नितिन को, देन राहुल रिपोर्ट कर रहा है नीलेश को, देन नीलेश रिपोर्ट कर रहा है नितिन को, नितिन रिपोर्ट कर रहा है सारंग को. यू फाइंड दैट आई कैन डेफिनेटली ड्रॉ डायग्राम लाइक दिस, बट आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, इफ आई ड्रॉन अ डायग्राम लाइक दिस, इट मेक्स इट रियली क्योस टू अंडरस्टैंड इट. सो इन ऑर्डर टू मेक इट रीडेबल, इन ऑर्डर टू मेक इट रीडेबल, एक ही टेबल मैंने 2 बार ड्रॉ किया. एक ही टेबल
मैंने 2 बार ड्रॉ किया है, वेयर आई कैन क्लियरली शो यू, व्हेन आई कैन क्लियरली शो यू, अच्छा ये एम्प्लॉइज है और ये जिनको वो रिपोर्ट कर रहे हैं ये करस्पॉन्डिंग मैनेजर्स है। चलो अच्छी बात है, लेकिन ये आउटपुट अभी मुझको चाहिए। प्लीज नोट, दिस इज द आउटपुट दैट आई एम लुकिंग फॉर। तो सर हम लोग कैसे करेंगे? टू बी फ्रैंक, फॉरगेट फॉरगेट कि ये एक टेबल है। लेट अस एज्यूम दैट हमारे पास दो अलग अलग टेबल है। लेट अस एज्यूम दैट हमारे पास दो अलग अलग टेबल है। अगर दो अलग अलग टेबल होते तो हम लोग कौन सा क्वेरी फायर करते जिससे ये काम बन जाता? मुझको एम्प्लॉइज और करस्पॉन्डिंग मैनेजर्स प्रिंट करने हैं। लेट अस एज्यूम दैट दीज आर टू डिफरेंट टेबल्स, एक है एम्प्लॉइज टेबल और एक टेबल है लेट्स से मैनेजर्स टेबल। इसको कनेक्ट करना है तो हम लोग कौन सा क्वेरी फायर करते हैं? ऑब्वियसली हम लोग क्वेरी फायर करते हैं इनर जॉइन। और हम लोग क्या कहते हैं? हैव अ लुक एट दिस, हम लोग क्या कहते हैं? ये जो एम्प्लॉई है, प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन, ये जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉइज के टेबल के अंदर का जो मैनेजर कॉलम है, एम्प्लॉइज के टेबल के अंदर का जो मैनेजर्स कॉलम है, वो मैनेजर्स के टेबल के अंदर के एम्प्लॉय के कॉलम के साथ मुझको मैप करना है, राइट? एंड दिस इज समथिंग आई एम लुकिंग फॉर। आई रिपीट वंस अगेन, ये क्वेरी मुझको लिखना इतना आसान है। क्या आसान है? आई एम सेइंग दैट ये अगर आपके पास दो अलग अलग टेबल होते, एक एम्प्लॉइज का टेबल अलग होता, एक मैनेजर्स का टेबल अलग होता, तो हम लोग क्वेरी कैसे लिखते हैं? हम लोग लिखते हैं ये एम्प्लॉइज है और ये मैनेजर है, हम लोग सीधा इसके ऊपर इनर जॉइन लगाते हैं। लेकिन से इनर जॉइन किसका किसके साथ लगाना है मैं बता रहा हूं। एम्प्लॉइज के टेबल का मैनेजर नंबर, मैनेजर कॉलम, आई विल ट्राई टू कनेक्ट मैनेजर्स कॉलम एम्प्लॉय नंबर। और यहां पर ये जो एरोज मैंने ड्रॉ किए है, इसके आपको ऑटोमेटिकली पता चल रहा है कौन किसके साथ कैसे मैप कर रहा है। इट्स दैट सिंपल। एंड इफ इट इज दैट सिंपल, आई कैन गो अहेड एंड व्हाई नॉट, राइट? ऑब्वियसली ये कोई सेल्फ ज्वाइन नहीं है। अब मैंने कहा दो अलग अलग टेबल्स है, दो अलग अलग टेबल्स है, तो मैं कैसे करूंगा? हैव अ लुक एट दिस, सिलेक्ट ई डॉट ई नेम, e dot ename and m dot ename from employees e, inner join managers m on e dot एम्प्लॉय का मैनेजर नंबर इज इक्वल टू मैनेजर्स एम्प्लॉय नंबर एंड द स्टोरी विल बिकम वेरी सिंपल। मैं फिर से बता रहा हूं कि यहां पर एम्प्लॉइज के टेबल का नाम और मैनेजर्स के टेबल के अंदर का नाम ये मेरे को डिस्प्ले करना है। ओके, अच्छी बात है, मेरे को डिस्प्ले करना है। अब मैं क्या कह रहा हूं, आई एम पुटिंग अ फ्रॉम कीवर्ड। मेरा पहला टेबल है एम्प्लॉइज टेबल, इस एम्प्लॉइज के टेबल को मुझको कनेक्ट करना है दूसरे टेबल के साथ, दैट इज नथिंग बट द मैनेजर्स टेबल। ऑब्वियसली कनेक्टिविटी क्या करना है? एम्प्लॉय के टेबल के अंदर जो मैनेजर नंबर दिया है, अभी पहले की पिछले प्रोग्राम में क्या था, हम लोग एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट कर रहे थे, तो हम लोग क्या कर रहे थे, एम्प्लॉय के टेबल के अंदर का डिपार्टमेंट नंबर हम लोग करस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर के डिपार्टमेंट नंबर को कनेक्ट कर रहे थे। अब मैं क्या कह रहा हूं कि एम्प्लॉय के टेबल के अंदर का जो मैनेजर नंबर है वो करस्पॉन्डिंग उस मैनेजर का एम्प्लॉय नंबर है। ये हर एक मैनेजर एक एम्प्लॉय है, ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो हर एक एम्प्लॉय का मैनेजर is equal to manager's employee number and you will be able to write a query. But the fact is that मेरे दो टेबल अलग अलग नहीं है। ये थियोरेटिकली ठीक है कि अगर मेरे पास दो टेबल होते तो, अगर आपके पास दो टेबल होते तो आप लोग ऐसा करते, मैं एग्री कर रहा हूं। लेकिन आपके पास दो टेबल नहीं है, तो क्वेश्चन इज दैट तो सर अब हम लोग कनेक्ट कैसे करेंगे? माय आंसर इज वेरी सिंपल। इवन दो आपके पास दो टेबल नहीं है, आप लोग आपके पास दो टेबल है ऐसा विजुअलाइज करो। आप आपके पास दो टेबल्स है ऐसा कंसीडर करो। आपका हर एक एम्प्लॉय यू कैन कंपेयर विथ ऑल अदर एम्प्लॉइज इन द सेम टेबल एंड दैट इज समथिंग, प्लीज पे अटेंशन। मैनेजर्स का अलग टेबल नहीं है, वो टेबल भी मेरा एम्प्लॉइज का टेबल ही है। ये अगर मैं कंसिडर करूं तो ये क्वेरी मुझको मेरा रिजल्ट देगी जो मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। ओ राहुल इज मैप टू द नीलेश, अमित इज मैप टू द नितिन, नीलेश इज मैप टू द नितिन एंड नितिन इज ऑल्सो मैप टू द सारंग। ओनली प्रॉब्लम इज दैट सर ये भी ई नेम है, ये भी ई नेम है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। रुको जरा, ये एम्प्लॉय के अंदर का ई नेम है तो शायद ये एम्प्लॉय का नाम है,
ये मैनेजर के अंदर का ई नेम है, तो मैं इसको एक अलाइस दे देता हूं ताकि आप इसको अच्छे से पढ़ पाओ कि ये मैनेजर का नाम है, जस्ट टू मेक इट रीडेबल, बाकी कुछ नहीं। अदरवाइज सो दिस लाइक एम्प्लॉय नेम एंड दिस इज करस्पॉन्डिंग मैनेजर नेम, दिस इज एम्प्लॉय नेम, दिस करस्पॉन्डिंग मैनेजर नेम, एम्प्लॉय नेम and corresponding manager name. You just continue as it is. Nothing special we are doing. Nothing special we are doing. And this particular join. So वैसे मेरे पास दो टेबल तो नहीं थे, टेबल मेरे पास एक ही था, लेकिन जब मैं एक ही टेबल को जब मैं दो टेबल के साथ कनेक्ट करता हूं, दो टेबल समझ के कनेक्ट करता हूं, तब ऐसे टेबल को कहा जाता है, ऐसे ज्वाइन को कहा जाता है सेल्फ ज्वाइन। होल्ड ऑन योर क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चन एक साथ पूछना। सर मान लो सर मेरे को ये ज्वाइन समझ में नहीं आ रहा है, तो सर अगर यही कोड मुझको नॉर्मल नॉर्मल सी लैंग्वेज में या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखना है, आपने पहले ही बताया था ज्वाइंस क्या होते हैं, ज्वाइंस इज नथिंग बट इंटरनल नेस्टेड लूप्स होते हैं। तो सर यही चीज अगर मुझको नेस्टेड लूप्स की भाषा में करनी है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? लेट मी इवन एक्सप्लेन दैट, और उसके बाद में आपको जो पूछना है आप लोग पूछो। जो लॉजिक हमने थोड़ी देर पहले लिखा था वही लॉजिक मैं फिर से एक बार लिखना चाहूंगा। Here I'm saying that for कहाँ पर गया, for each E in employees, listen carefully, for each E in employees, what we are doing, we are checking for each M in managers, for each M in manager, assuming that these are two different collections, I'm checking if employees का मैनेजर नंबर is equal to manager's employee number, if employees manager number is equal to manager's employee number, simply I want to print that employee's number, employee's name, and corresponding I want to print even the manager's name, and to corresponding print even the manager's name. But the fact is that मेरे पास employees और managers ऐसे दो अलग अलग arrays नहीं है, मेरे पास ऐसे दो अलग अलग collections नहीं है, and since that is a fact I'm simply saying that ये employees and employees have written nothing much to be done। तो मैं क्या कह रहा हूं, अगर आप लोग employees का एक array ट्रीट कर रहे हो, अगर आप लोग employee का एक array ट्रीट कर रहे हो, मैं कह रहा हूं employee के array का एक एलिमेंट ले लो, कंपेयर विथ ऑल अदर एलिमेंट्स, देन अगेन एम्प्लॉय के एरे का दूसरा एलिमेंट ले लो, यू कंपेयर विथ ऑल अदर एलिमेंट्स, एम्प्लॉय के एरे का थर्ड एलिमेंट ले लो, यू कंपेयर विथ ऑल अदर एलिमेंट्स, एंड दैट सॉर्ट ऑफ लॉजिक हम लोग यहाँ पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लॉजिक अगर आपने कभी डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है तो सिलेक्शन सॉर्ट में हम लोग ऐसा ही कुछ करते हैं, वी टेक वन एंड वी कंपेयर विथ रिमेनिंग ऑल, वी टेक सेकेंड वी कंपेयर विथ रिमेनिंग ऑल, वी टेक थर्ड वी कंपेयर विथ रिमेनिंग ऑल। सो ऐसे करके हम लोग कंपेयर करते हैं, समथिंग सिमिलर टू द सिलेक्शन सॉर्ट हम लोग लॉजिक लिखते हैं। मैं यहाँ पर डायग्रामेटिकली दिखा रहा हूं, वी हैव गॉट array of employees, we have got array of employees, and we have got array of 5 employees, 1 2 3 में सारे एलिमेंट, पूरा डेटा नहीं लिख रहा हूं, यहां पर मैं लॉजिकली बता रहा हूं। लॉजिकली फर्स्ट एलिमेंट इज कंपेयर्ड विथ, फर्स्ट एलिमेंट इज कंपेयर्ड विथ all remaining elements, all remaining elements, okay? Then the second element I'm again comparing with all remaining elements, and then third element is again I'm trying to compare with all remaining elements, and this is what kind of a logic that I'm doing, comparison में सबके साथ कर रहा हूं, जहां पर मैच हो रहा है उतना मैं प्रिंट कर रहा हूं, जहां पर मैच नहीं हो रहा है मैं उसको प्रिंट नहीं कर रहा हूं, दैट सिंपल। दिस जॉइन यहां पर एम्प्लॉइज का जॉइन एम्प्लॉय से जब होता है तब हम लोग उसको कहते हैं इट इज अ सेल्फ जॉइन। टू बी फ्रैंक माय लॉजिक इज वेरी सिंपल, जब भी मैं सेल्फ जॉइन लिखता हूं तो मैं सेल्फ जॉइन में एक टेबल कंसिडर नहीं करता। आई रिपीट वंस अगेन, जब भी मैं सेल्फ जॉइन लिखता हूं तो मैं एक टेबल कंसिडर नहीं करता हूं, मैं इमेजिन करता हूं कि मेरे पास दो अलग अलग टेबल है। जैसे अभी मैंने इमेजिन किया, मैंने इमेजिन किया मेरे पास एम्प्लॉयज का टेबल अलग है और मेरे पास मैनेजर का टेबल अलग है। अब मैं अपने आप से सवाल पूछता हूं, यार इस टेबल को उस टेबल के किसके साथ ज्वाइन करना है? मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? मुझको एम्प्लॉय का मैनेजर चाहिए, मतलब एम्प्लॉय के अंदर का जो मैनेजर कॉलम है वो मुझको मैनेजर का जो एम्प्लॉय नंबर है उसके साथ मैप करना पड़ेगा। ये मेरे दो अलग अलग टेबल करके मैंने विजुअलाइज किए और ये क्वेरी मुझको लिखनी है। सिर्फ
लास्ट मोमेंट में मुझको याद आता है, अरे लेकिन मेरे पास दो टेबल है ही नहीं, मेरे पास तो टेबल एक ही है। अच्छा तेरे पास टेबल एक ही है, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि इसके मैं नाम अलग अलग ट्रीट कर लूं। पहले का नाम मैं ट्रीट कर लूं ई, दूसरे का नाम मैं ट्रीट कर लूं एम, तो मेरा काम वैसे भी बन जाएगा। आई एम जस्ट राइटिंग अ क्वेरी वंस अगेन, व्हाट आई हैव डन, सिलेक्ट सिलेक्ट e dot e name, employee का name, and m, considering that this is a different table, m dot e name, employee का name, and this name I'm going ahead from employees e, or from employees e। बाय द वे किसके साथ ज्वाइन करना है, मैं कह रहा हूं वही टेबल मैं दूसरे के साथ ज्वाइन कर रहा है, दूसरे के साथ ज्वाइन कर रहा है। सो आई एम सिंपली सेइंग दैट इट इज इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन ये मैनेजर्स, लेकिन मैनेजर्स नाम का दूसरा टेबल नहीं है। एम्प्लॉइज के टेबल का मैं सेकंड कॉपी कंसीडर कर रहा हूं एम नाम से, एम्प्लॉइज के टेबल का पहला कॉपी मैं कंसीडर कर रहा हूं ई नाम से, एम्प्लॉय के टेबल का दूसरा कॉपी में कंसीडर कर रहा हूं एम नाम से। और बाद में आपको जो क्वेरी लिखनी है, एम्प्लॉय का मैनेजर नंबर इज इक्वल टू मैनेजर्स एम्प्लॉय नंबर, एंड दिस इज डन। अमित, सारे एम्प्लॉय एक दूसरे के मैनेजर होते हैं, क्योंकि जो मैनेजर होता है वो भी कंपनी में काम करता है और उसको भी सैलरी मिलती है। सो लाइफ टाइम ऐसे ही होने वाला है। जब आप लोग कंपनी ज्वाइन करोगे, आप जिसको रिपोर्ट करने वाले हो वो कोई मालक नहीं होने वाला है, वो भी उस कंपनी का मैनेजर ही होने वाला है। दैट इज बट कॉमन सेंस, आई गेस दैट इज अ क्वेरी। ए बाय द वे एक बात बताओ, ये ज्वाइन कौन सा था? Is it an inner join? Absolutely, it is an inner join. So self join can be an inner join or it could be outer join. वो choice is yours. हम उसको self join क्यों कहते हैं? क्योंकि join is done on same table. That is the reason हम उसको self join करते हैं. That is the reason हम लोग self join कहते हैं. Otherwise मेरे हिसाब से self join नाम का कोई टॉपिक ही नहीं होना चाहिए। सेल्फ ज्वाइन मतलब एक टेबल को दो बार कंसिडर करो और ज्वाइन लगाओ, दैट्स इट। बट रुको, इस पूरे केस में एक एम्प्लॉय गायब हो रहा है, इस पूरे केस में एक एम्प्लॉय गायब हो रहा है। कैन यू प्लीज टेल मी कौन सा एम्प्लॉय गायब हो रहा है? वो सारंग गायब हो रहा है। और सारंग गायब क्यों हो रहा है? ये सारंग क्यों गायब हो रहा है? अरे गायब क्यों हो रहा है वो बताओ। गायब इसलिए हो रहा है क्योंकि, ये गायब इसलिए हो रहा है, ये जो सारंग है, लिसन केयरफुली, जो सारंग है उसके करस्पॉन्डिंग कोई मैनेजर ही नहीं है। ओ, सारंग के करस्पॉन्डिंग कोई मैनेजर नहीं है, इसलिए सारंग मिसिंग हो रहा है। अब रुको, मैं कह रहा हूं कि मेरे को सारंग भी आना चाहिए। हेलो, मुझको सारंग भी आना चाहिए, भले वो किसी को मैनेजर नहीं कर रहा है तो आगे न लाना चाहिए, आगे न लाना चाहिए। दैट इज माई रिक्वायरमेंट। अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट होगी तो आप लोग क्या करोगे? ऑब्वियसली भी आपको आउटर ज्वाइन लगाने हैं। ये जो मैचिंग चार है वो तो आपको दिख ही रहे, ए प्लीज नोट, जो मैचिंग चार है वो तो आपको दिख ही रहे। प्लस आप कह रहे हो कि ये जो सारंग नाम का एम्प्लॉई है उसके करस्पॉन्डिंग, सारंग नाम का जो एम्प्लॉई है उसके करस्पॉन्डिंग मैनेजर नहीं भी होगा तो भी आपको दिखना चाहिए। ऑल आई नीड टू डू इज दैट, नॉट इनर ज्वाइन। ये आपको एम्प्लॉइज के टेबल वाला एक्स्ट्रा चाहिए ना, तो एम्प्लॉइज का टेबल हम लोगों ने ज्वाइन के पहले लिखा है, तो मैं इसको जाके लिखूंगा लेफ्ट आउटर ज्वाइन। आउटर कीवर्ड इज ऑप्शनल, ये मेरे को पता है, स्टिल मैं लिखूंगा just to keep it simple, and I found that oh I got a sarang as well, लेकिन सारंग के करस्पॉन्डिंग कोई एम्प्लॉय नहीं है, करस्पॉन्डिंग कोई मैनेजर नहीं है। दैट्स इट। सो आई एम सेइंग दैट दिस इज सेल्फ ज्वाइन, दिस इज सेल्फ ज्वाइन, self join, this is inner join, inner join with same table, inner join with same table, and you get only intersection. Okay, that is great. Here you go, this is again a self join, but in this case it is outer join, outer join. Here you get intersection plus extra from left table, एक्स्ट्रा फ्रॉम लेफ्ट टेबल। दैट इज हमारे केस में, हमारे केस में हम लोगों ने उसको ईएमपीज ई कहा है। दैट्स इट, इट इज इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज गो अहेड, ट्राई इट ऑन योर सेल्फ। यू कॉल इट सेल्फ ज्वाइन। सेल्फ ज्वाइन में गॉड से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि सेल्फ ज्वाइन इज क्वाइट सिंपल। आप उसको एक टेबल मत ट्रीट करना, दो टेबल ट्रीट करना, योर लाइफ बिकम वेरी सिंपल। अब थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, जब लोग असाइनमेंट करोगे तो आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, बट आई एम वेरी श्योर एज यू पीपल विल डू लिटिल मोर ऑफ असाइनमेंट, यू विल बी लाइक मोर कंफर्टेबल।
सो जो कुछ भी हमको जॉइंस में पढ़ना था, एज फार एज कंसेप्ट्स आर कंसर्न, बेसिक कंसेप्ट्स आर कंसर्न, दैट इज फिनिश्ड. नाउ ऑब्वियसली वी वांट टू सी, सर ज्वाइन हम लोग एडवांस में कैसे पढ़ेंगे. एडवांस में मतलब कॉम्बिनेशंस कैसे करेंगे. अभी तक आप सिर्फ 2 ही ज्वाइंस की बात कर रहा हूं. सर हमको 2 ज्वाइन की नहीं बात करनी है, हमको 3 टेबल के ज्वाइन की बात करनी है, या हमें ज्वाइन और ग्रुपिंग की बात करनी है, तो हम लोग कैसे करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. दैट मीन्स वी कैन नॉट परफॉर्म सेल्फ ज्वाइन विदाउट अलायंस. एब्सोल्युटली करेक्ट. अतुल, वॉट एवर यू आर सेइंग इज करेक्ट. इट मीन्स दैट वी कैन नॉट परफॉर्म सेल्फ ज्वाइन विदाउट अलायंस. सो अलायंस करना ही पड़ता है. कैन यू राइट वेयर क्लॉज विद दिस. यस जानवी, हम लोग वेयर क्लॉज भी लिखेंगे. मैं आपको बताऊंगा वेयर क्लॉज कैसे लिखना है, ये भी बताऊंगा. इसके साथ ग्रुप बाय कैसे करना है, ये भी बताऊंगा. इसके साथ ऑर्डर बाय कैसे करना है, वो भी बताता हूँ. इसके साथ और क्या क्या करना है, सब कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे. नाउ यू प्लीज पे अटेंशन. बेसिक जॉइंट्स आर डन, एंड देन आई एम सेइंग दैट, अब ये एडवांस तो नहीं है, बट आई एम सेइंग दैट इट लाइक अ जॉइन विथ joins with other clauses. Joins with other clauses. So join with some other joins or something like that you can talk about. सबसे कॉम्प्लिकेटेड से शुरू करते हैं, छोटी छोटी चीजें नहीं शुरू करते. लेट अस स्टार्ट विद द कॉम्प्लिकेटेड वन. छोटी छोटी चीजें तो आप लोग बना लोगे, आई एम वेरी श्योर. जरा पहले टेबल पढ़ो, टेबल पढ़ो, डेटा पढ़ो, डेटा समझो, रिक्वायरमेंट समझो, और उसके बाद में बात करेंगे. राइट, दैट इज इंपॉर्टेंट. तो सर डेटा क्या, डेटा क्या है, लेट मी शो यू डेटा. Suppose that I'm having employees. Have a look at this. Select star from employees. Oh, I got all employees. That is great. Let's say that apart from employees, I'm having select star from department. Oh, I'm having all departments. रुको जरा, मैंने गलत वाला डिस्प्ले किया. मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, ताकि आप लोग भी एक बार इस डेटा को आंखें भर के देख लो, so that you will be comfortable. Select star from departments, ये भी आपके सामने है. प्लस सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, लेट्स से समवेयर एक एड्रेस का भी टेबल है, वो भी मैंने कर दिया. हैव अ लुक एट दिस. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, 5 एम्प्लॉइज है, वेरी गुड. ये इनके डिपार्टमेंट 4 डिपार्टमेंट्स हैं, वेरी गुड. और ये एड्रेसेस जो है, ये 5 एम्प्लॉय के 5 एड्रेसेस है. आप लोग यहाँ पर नोट कर रहे होंगे, 5 एम्प्लॉयज के यहाँ पर 5 एड्रेसेस है. वी हैव गॉट समथिंग कॉल्ड एज ईएमपी एनो देयर. तो सर अब क्या करना है आपको, मुझको रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है, मेरे को एम्प्लॉय का नेम चाहिए, मुझको करस्पॉन्डिंग एम्प्लॉय का नेम चाहिए, करस्पॉन्डिंग उसके डिपार्टमेंट का नेम चाहिए, और उसके करस्पॉन्डिंग मुझको उसका तालुका प्लेस चाहिए. सो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. माय रिक्वायरमेंट इज दैट प्रिंट एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नेम, and taluka of employee, taluka of the employee. This is my requirement. Is the requirement is clear? Is the requirement is clear? So मुझको क्या प्रिंट करना है, मुझको प्रिंट करना है अमित इज ए एम्प्लॉई, ही इज अ डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, एंड ही इज लिविंग लाइक अ गडिंगलज, तो ये उसका तालुका है. ओके, राहुल इज ए एम्प्लॉई, ही इज इनटू द डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, बट ही इज राइट नाउ इनटू कराड़ तालुका. ताल मतलब तालुका और तहसील, यू कैन से तालुका ले लो, तहसील ले लो, प्लेस ले लो. रिंकी, दैट इज नॉट अ बिग डील, यू कैन गिव एनी नेम. आई होप इट इज अंडरस्टूड. ए Nilesh is an employee, Nilesh is an employee like a QA department, and his taluka is like say Junnar, is living into the Junnar. Okay, अच्छी बात है. And Nitin and Sarang, again they are lying into the Y and Karad, but unfortunately they do not have corresponding department names. Let it be. तो चलो जितने हैं उतने हम लोग डिस्प्ले करते हैं, और मैं पूरी क्वेरी एक साथ नहीं लिखूंगा. लिसन केयरफुली, मैं पूरी क्वेरी एक साथ नहीं लिखूंगा, मैं वन बाय वन लिखूंगा. पहले मैं लिखूंगा एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट नेम कैसे करना है, ये मैं पहले लिखूंगा. उसके बाद में एम्प्लॉय नेम एंड तालुका ऑफ दैट एम्प्लॉय कैसे करना है, ये मैं लिखूंगा. और उसके बाद में मैं सोचूंगा कि मेरे को तीनों इकट्ठा कैसे लिखने हैं. सो जिन जिन लोगों को सोचना है ऐसा मेरे को 3 टेबल ज्वाइन करने हैं, ये पहली चीज है कि आप लोग गलत कर रहे हो. डू नॉट थिंक ऑफ ज्वाइनिंग 3 टेबल्स. 3 टेबल कभी ज्वाइन नहीं होते. जो भी ज्वाइन होते पहले कोई तो 2 टेबल ज्वाइन कर लो, और फिर उसका जो रिजल्ट आएगा उससे तीसरा टेबल ज्वाइन होता है. ये पहले आप लोग समझो. डोंट आस्क क्वेश्चन से 4 टेबल कैसे ज्वाइन करूं. 4 टेबल ज्वाइन मत करना, पहले 2 टेबल ज्वाइन करना, उसके रिजल्ट के साथ तीसरा टेबल ज्वाइन करना,
और वो पूरा जो ज्वाइन का रिजल्ट आएगा उसके साथ में चौथा टेबल ज्वाइन करना. सो यू गो स्टेप बाय स्टेप, योर लाइफ बिकम्स इजी. आई एम जस्ट गोइंग अहेड. आई एम जस्ट गोइंग अहेड. पहला वाला तो आपको आता है. यू पीपल आर इंटेलिजेंट, सो यू ऑलरेडी नो. सिलेक्ट e dot e name comma d dot d name from employees e employees e inner join department d on e dot dptno is equal to d dot dptno. ये हम लोग कोई बड़ा तीर नहीं मार रहे, ये हम लोगों ने इससे पहले भी किया था. एंड यू नो द रिजल्ट. जो मैचिंग है उतने डिस्प्ले होंगे, जो मैचिंग नहीं है वो डिस्प्ले नहीं होंगे. क्योंकि वो, अरे ऐसा क्यों है? क्योंकि वो इनर जॉइन है. दैट यू नो इट वेरी वेल. कोई बात नहीं. आई एम जस्ट गोइंग अहेड. ऑन द सिमिलर लाइन हम लोग ये ई नेम और तालुका कैसे ज्वाइन करेंगे? प्लीज गो एंड टेक अ लुक एट द डेटा. गो एंड टेक अ लुक एट द डेटा. कोई मुझको बताएगा एम्प्लॉइज के टेबल का कौन सा कॉलम मुझको एड्रेस के कॉलम के साथ ज्वाइन करना है? यू फाइंड दैट ओ इसका एम्प्लॉय नंबर मुझको एड्रेस के एम्प्लॉय नंबर के साथ ज्वाइन करना है, क्योंकि वो दोनों सिमिलर है. ये एक अमित है और ये अमित का करस्पॉन्डिंग गडिंगलज, ये उसका तालुका है. ओके, अच्छी बात है. मैं आगे जाता हूं और मैं कहता हूं सिलेक्ट ई डॉट ई नेम कॉमा कॉमा ए डॉट क्यू रीडेबल करने के लिए आपने डी लिखा तो भी चलेगा, अलाइस कुछ भी हो सकता है. एंड आई एम लुकिंग फॉर तालुका फ्रॉम एम्प्लॉइज ई. एंड देन आई एम सेइंग दैट इनर जॉइन एड्रेस ए on e.empno a.empno. Okay, that is great. And let me try to write a query and let me see. Oh, I'm getting the result. Amit and Gadinglas, Rahul Karad, Nilesh Junnar, Nitin Vai, Sarang Karad. Oh, that is fantastic. What if there is no similar column? Rajendra का क्वेश्चन है, if there is no similar column, this table cannot be joined. That is very simple. आपके पास एक बुक्स का टेबल है और आपके पास एक एम्प्लॉय का टेबल है. सब बुक्स का टेबल और एम्प्लॉय का टेबल मैं कैसे ज्वाइन करूं? दैट डजंट मेक एनी सेंस. सी क्रॉस ज्वाइन, सी ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन नहीं करते. पहले आप लोग डेटा का सेंस ढूंढो. हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं. डोंट डू इट सर, कुछ नहीं सर, क्या करना है आज सर, बोर हो रहा है आज मैं ज्वाइन करके देखता हूं. ऐसे ज्वाइंस नहीं होते. आप लोग रिक्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू ढूंढो कि कंपनी में जब रिक्वायरमेंट्स होंगे, प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट होंगे, तो एक एम्प्लॉइज है, एक बुक्स है, उनका क्या रिलेशन हो सकता है? उनका कोई रिलेशन नहीं है. तो ऐसा कुछ आपके टेबल में होता ही नहीं है. सो जहां पर चीजें रिलेटेड है, जहां पर रिलेवेंट्स है, वहां पर ज्वाइन लगाया करो. जस्ट डोंट राइट ज्वाइन फॉर सेक ऑफ राइटिंग अ ज्वाइन, राइट? नॉट ओनली राजेंद्र, इवन फॉर अदर्स. सो ज्वाइन लगाते वक्त पहले सोचो. जिसने भी असाइनमेंट लिखा है, लोग क्या करते हैं, वो असाइनमेंट मैंने बहुत बार देखा है. अब लोग आज उनको असाइनमेंट, कुछ लोगों को आज सॉल्व नहीं हुए, अब ये कल क्या करेंगे, ये टेबल लो, ये टेबल लो, अच्छा इसके अंदर ये कॉलम नेम और ये कॉलम नेम सेम सेम दिखता है, चलो लगाओ इक्वल टू. ऐसा ज्वाइन नहीं होता है. ज्वाइंस के लिए पहले डेटाबेस का डेटा समझना पड़ता है. समझना पड़ता है कि एम्प्लॉय टेबल में और एड्रेस टेबल में रिलेशन क्या है. यू नीड टू स्पेंड अ लिटिल टाइम ऑन दैट. 5-10 मिनट पहले उसके ऊपर सोचो कि ये रिलेशंस क्यों लगाए गए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट रिलेशन. नॉट नेसेसरी कि सिर्फ टेबल का नाम, ज्वाइन कॉलम का नाम इक्वल लगा रहा है इसलिए ज्वाइन लगा दो. इससे आपके असाइनमेंट पूरे हो सकते हैं, बट देन यू आर नॉट डेटाबेस एक्सपर्ट. प्लीज अंडरस्टैंड दैट. It takes so much time to understand. Definitely it should take time to understand, and that is what, please note. मैं एक आज बहुत पते की बात बताता हूं. मैं एक पते की बात बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगी. आईटी में, अभी हम लोग आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, अभी हम लोग कंप्यूटर्स में सब लोग हैं. ध्यान से सुनो, मैं जो पते की बात बता रहा हूं. अभी हम लोग कंप्यूटर साइंस में हैं, हम लोग आईटी में हैं, हम लोग सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने वाले हैं. बाय द वे, आपने कभी सोचा है हम लोग सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल क्यों बनना चाहते हैं? आई नो दैट आपका आंसर बहुत सिंपल है. सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स को बहुत सारी सैलरी मिलती है. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल को बहुत सारी सैलरी मिलती है, इसलिए हम लोग सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनना चाहते हैं. बट आपने कभी ये सोचा है सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल को बहुत सारी सैलरी क्यों मिलती है? सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल को बहुत सारी सैलरी क्यों मिलती है?
क्योंकि इट इज नॉट ओनली जॉब इन डिमांड, वहां पर दिमाग उतना लगाना पड़ता है, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ते हैं, आपको डोमेन समझने पड़ते हैं। और डोमेन, वापस एक बार, असाइनमेंट समझना अलग बात है। आपको जो कस्टमर आता है, वो कस्टमर आपका आईटी वाला नहीं होता है, वो अपनी भाषा में आके प्रॉब्लम बताता है। आपको वो प्रॉब्लम सुनना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है, उसको कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, और बाद में जाके उसको इंप्लीमेंट करना पड़ता है। So, writing the 10 lines of programs doesn't make you software professional. You will understand. ये समझने के लिए आपको कुछ साल जाएंगे. But people who have got this kind of customer centric view, कि जिनको लोगों के प्रॉब्लम, लोग जिस डोमेन में काम करते हैं, जिन लोगों को वो डोमेन समझ में आते हैं, these are the people who are successful into the IT industry. जिन लोगों को प्रोग्रामिंग बहुत ज्यादा आता है, वो लोग हमेशा सक्सेसफुल होते हैं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं। क्योंकि प्रोग्रामिंग अप्लाई करने के लिए आपको दूसरा साइड भी आना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। आई नो दैट आई एम गोइंग बिट ऑफ द टॉपिक, लेकिन ये ट्यूनिंग के लिए बहुत जरूरी है। आप लोगों ने आप लोगों ने कभी मैथमेटिक्स किया होगा। मैथमेटिक्स पढ़ना एक अलग चीज है, फिजिक्स पढ़ना एक अलग चीज है। लेकिन जब हम लोग कहते हैं कि फिजिक्स के सम सॉल्व करने हैं, फिजिक्स से सम सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ मैथ्स का एक्सपर्ट होकर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, ना तो आपको सिर्फ फिजिक्स का एक्सपर्ट होकर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, फिर आपको फिजिक्स और मैथ्स दोनों आनी चाहिए। इसको हम लोग कहते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स। आई होप आप लोगों ने इंजीनियरिंग किया है, तो मैथ्स और फिजिक्स आपके लिए अलग नहीं होगा। दिस इज समथिंग दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, एंड दिस विल टेक टाइम। करेक्ट? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैसे बढ़ते हैं, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के लिए उस तरफ सोचना पड़ता है, प्रॉब्लम के लिए टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, एंड देन यू नीड टू थिंक ऑफ आपका पैशन, उसके लिए पैशन चाहिए। पैशन चाहिए। मैं आईक्यू नहीं कहूंगा, इट इज नॉट रिलेटेड टू आईक्यू, इट इज रिलेटेड टू योर पैशन। ओवर द पीरियड थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाता है। अब आप लोग कितना टाइम स्पेंड करते हो, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। मैं आपको अपने एग्जांपल देता हूं। एज आई सेड दैट, मैं कभी भी अपने आप को ब्राइट स्टूडेंट नहीं समझता था, नाइदर इट वाज, बट यस पैशनेट जरूर था। सो ऐसे मैंने कुछ कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए। आई स्टिल रिकॉल कुछ कुछ प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किए, एंड दोज प्रॉब्लम्स I took that. Again, problems were very simple, but the same problem, probably I spent 6, 7, 8 days just finding a logic of one problem. एक असाइनमेंट कोई तो था, yes, exactly, 10,000 hours formula, it is still there. लॉजिक कुछ तो था, बट देन आई वाज जस्ट थिंकिंग, यार ये कैसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है। लिटरली देयर वाज टाइम कि जब मैं रात को सोता था, तो मेरे को नींद में से याद आता था, यार इस प्रॉब्लम का शायद सॉल्यूशन ये होगा। आई सेड दैट पैशन मैटर्स। एंड ओवर द पीरियड जो लॉजिक दिमाग में नींद में लगता था, सुबह उठ के मैं ट्राई करके देखता था और वो चल जाता था। इट टेक्स टाइम ऑब्वियसली। वो लेवल अटेंड करने के लिए आपने खुद को उसके अंदर उतना डुबोना चाहिए, वो जरूरी है। आप लोग कैसे दो दो घंटे लेक्चर में आओगे, फिर 2 घंटे लैब में आओगे। कुछ कुछ महान लोग हैं, वो सिर्फ अटेंडेंस देने के लिए लैब में आते हैं। अगर आप लोग इस स्पीड से अगर आप लोग काम करोगे, देन यू डू नॉट एक्सपेक्ट 6 मंथ्स नहीं, आप 60 साल भी काम कर लो, आपका कुछ नहीं होने वाला है। देन यू आर एट द रॉन्ग प्लेस, राइट? हाँ, यस। सो फ्यू पीपल से दैट एक सर्टेन टाइम के बाद में दिमाग हैंग हो जाता है। यस आई नो, मेरा बहुत बार हुआ था। सो ऐसे वक्त में मैं क्या करता हूँ, बहुत दिमाग हैंग हो जाता है, उस प्रॉब्लम को छोड़ देता हूँ, कुछ और करता हूँ, और 2 दिन के बाद मैं वापस उस प्रॉब्लम के ऊपर सोचता हूँ, दिमाग चल जाता है। थिंग्स मैटर। एनीवे, चलो अभी हम लोग आगे आगे बढ़ते हैं। एंड वी विल कंटिन्यू ऑन टू दिस, जो टॉपिक हम लोग बात कर रहे थे। नेक्स्ट, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, गोइंग अहेड। सर मुझको इन दोनों को कंबाइन करना है। मुझको क्या चाहिए, ये मुझको एम्प्लॉय का ई नेम चाहिए, मुझको डिपार्टमेंट का डी नेम चाहिए, और मुझको तालुका भी चाहिए एड्रेस के अंदर का। हाउ डू आई कंबाइन ऑल दिस? लेट मी राइट इट स्टेप बाय स्टेप। तो आप क्या कह रहे थे, मेरे को ये चाहिए, तो इसको पहले कॉपी पेस्ट कर लो। इसको तो मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। हैव अ लुक एट दिस। मुझको ये चाहिए, इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। बट इसके साथ साथ व्हाट यू लुकिंग फॉर, ए प्लीज पे अटेंशन, नाउ इट इज मैटर ऑफ सिंटैक्स। ए डॉट तालुका, एड्रेस ऑफ तालुका भी चाहिए, कोई बात नहीं। यू गो अहेड एंड यू सिंपली कंबाइन। इसकी कंडीशन क्या है, एम्प्लॉई और एड्रेस को कंबाइन करने की कंडीशन क्या है? ओ, ये कंडीशन मेरी यहां पर ऊपर लिखी हुई है। आई जस्ट गो अहेड, आई इवन कंबाइन दिस कंडीशन, एंड व्हेन आई कंबाइन all these conditions, I get the result where I have got e name, whether I have got d name,
whether I have got taluka, and this is, Amit is in a dev department, and Amit's taluka is Gadinglaj. Nilesh is in a QA department, Nilesh taluka is Junnar. Is that given your answer? Absolutely, it has given me the answer. अरे इज दैट क्लियर? मैंने कहा ना क्वेरी लिखना बहुत आसान है, समझने में टाइम लगता है. सो सिंटैक्स इज व्हाट, वेरी सिंपल. यू जस्ट कॉपी योर वन क्वेरी, यू जस्ट कॉपी योर वन क्वेरी, एंड देन सेकंड क्वेरी आपको पता है इसको कैसे कंबाइन करना है. यू ऑल्सो कॉपी इट्स जॉइन. दैट्स इट, दैट शुड डू. गो अहेड. आप लोग यूनियन के बारे में ना सोचो तो ज्यादा बेटर है. यूनियन की यहां पर जरूरत नहीं है. यूनियन आपको ज्यादातर प्रॉब्लम में नहीं लगने वाला है अमित. सो आई एम सेइंग दैट इंस्टेड ऑफ यूनियन हम लोग कब करते हैं, दो क्वेरीज के आउटपुट क्लब करने के लिए करते हैं. और दो क्वेरी के आउटपुट हॉरिजॉन्टली क्लब नहीं होते, एक के नीचे एक क्लब होते हैं. अमित, जब यूनियन करते हो तो ऊपर का आउटपुट और नीचे का आउटपुट उसके नीचे आता है. अब आपको उसके नीचे आउटपुट नहीं चाहिए, आपको साइड बाय साइड आउटपुट चाहिए. आपको साइड बाय साइड आउटपुट चाहिए. जिन लोगों को ये प्रॉब्लम समझ में आ गया है, लिसन केयरफुली, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम समझ में आ गया है, प्लीज लिसन. कैन यू टेल मी यहां पर तीन ही एम्प्लॉइज क्यों आ रहे हैं, 5 एम्प्लॉइज क्यों नहीं आ रहे? एनी गेस? यहां पर तीन ही एम्प्लॉइज आ रहे हैं, 5 एम्प्लॉइज क्यों नहीं आ रहे हैं? कौन से टेबल के साथ प्रॉब्लम है? कौन से टेबल के साथ प्रॉब्लम है? कौन से जॉइन में प्रॉब्लम है? अरे जॉइन में कौन से प्रॉब्लम है? एम्प्लॉय डिपार्टमेंट के जॉइन में प्रॉब्लम है या एम्प्लॉय एड्रेस के जॉइन में प्रॉब्लम है? यस, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट के जॉइन में प्रॉब्लम है. तो सर क्या आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो? हाँ, मैं तो सॉल्व कर सकता हूं. ए फॉर मी इट इज वेरी इजी. इफ आई नो द प्रॉब्लम, इफ आई अंडरस्टैंड दैट ये प्रॉब्लम इनर जॉइन की वजह से है, प्लीज टेक अ लुक एट दिस. अगर मुझको पता है ये प्रॉब्लम इनर जॉइन की वजह से है, तो व्हाट आई कैन थिंक ऑफ, हैव अ लुक एट दिस गाइस, प्लीज पे अटेंशन, टेक अ लुक एट दिस. ये प्रॉब्लम अगर आपको पता है इनर जॉइन की वजह से है, तो व्हाई डोंट आई गो अहेड एंड आई जस्ट मेक इट, लेट्स से लेफ्ट आउटर जॉइन और ओनली लेफ्ट जॉइन. ए लेफ्ट आउटर जॉइन करूंगा तो क्या मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? 100% सॉल्व हो जाएगा. अब रुको, बट सर व्हाट अबाउट एड्रेस? एड्रेस का फंडा तो अभी भी वही है. एड्रेस के लिए मुझको कोई आउटर जॉइन की जरूरत नहीं है, वो तो मेरा इनर जॉइन से भी चल रहा था, ये मैंने देखा हुआ है. सो आई एम जस्ट अगेन गोइंग अहेड, और जो एड्रेस की जो कंडीशन है, एड्रेस की जो कंडीशन है, मैं एड्रेस की कंडीशन को एज इट इज कॉपी करता हूं. तो सर ये मेरे को क्या देगा? यू जस्ट गो अहेड एंड सी दैट यू आर गेटिंग ऑल 5 एम्प्लॉइज करस्पॉन्डिंग देयर डिपार्टमेंट्स एंड करस्पॉन्डिंग देयर तालुका. आई होप स्टोरी सिंपल. आप लोग 3 टेबल को एक साथ ज्वाइन करने की कोशिश करोगे, योर लाइफ इज वेस्टेड. बेटर 2 टेबल को ज्वाइन करो, उनका सिग्निफिकेंस समझो, बाद में उसके अंदर तीसरा टेबल ऐड करो. सर 4 टेबल में ज्वाइन करना है, गो अहेड, चौथा टेबल उसके अंदर वो और ऐड कर लो. एज यू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस, you automatically understand what final results that you want. Is that clear? Hello? How to write the joins? How to write the joins in a multiple tables? I have just given you one example. Sir, अगर मेरे को सिर्फ 4 टेबल में ज्वाइन करना है, who has stopped you? Go ahead, try to make the join in like 4 tables. No one is stopping you. Correct? जस्ट कंसिडर करो सिर्फ. लेकिन आपको पहले पता होना चाहिए कि आपको किसके साथ क्या ज्वाइन करना है. आपको उन 2 इंडिविजुअल टेबल का पहले ज्वाइन करने आता है क्या नहीं आता है, ये पहले इंपॉर्टेंट है. अगर आपको वो भी नहीं आता है, देन देयर इज अ बिगर प्रॉब्लम. करेक्ट? एनीवे, नो प्रॉब्लम. आई एम जस्ट गोइंग अहेड. सो हाउ टू ज्वाइन मल्टीपल टेबल्स, आई हैव गिवन यू वन डेमो. लेट मी शो यू वन मोर डेमो एंड देन वी विल स्टॉप. मैं आपको और एक डेमो देता हूं और उसके बाद में मैं रुकता हूं आज के लिए. और एक डेमो, रुको जरा. उसके पहले someone was asking, listen the requirement. A requirement is very simple. Requirement is very simple. Print department name and number of employees in department. Print department name and number of employees in that department. मुझको डिपार्टमेंट नेम और उसके अंदर कितने एम्प्लॉइज है ये चाहिए. Again, why don't jump directly, go step by step. Select star from EMP. When you say select star from EMP, it will tell me आपके पास यहां पर डिपार्टमेंट के ऊपर फोकस करो. कोई मुझको बताएगा
डिपार्टमेंट नंबर 10 में कितने एम्प्लॉइज है? डिपार्टमेंट नंबर 10 में कितने एम्प्लॉइज है? 2 एम्प्लॉइज है, वेरी गुड। डिपार्टमेंट नंबर 20 में कितने एम्प्लॉइज है? एक एम्प्लॉय है। डिपार्टमेंट नंबर 50 में कितने एम्प्लॉइज है? 50 में कितने एम्प्लॉइज है? 2 एम्प्लॉइज है, वेरी गुड। बट बाय द वे सर वो 10 20 50 है कौन? ओ 10 20 50 है कौन? ये इंफॉर्मेशन मुझको डिपार्टमेंट्स के टेबल में मिलने वाली है। ये इंफॉर्मेशन मुझको डिपार्टमेंट के टेबल में मिलने वाली है। वेयर आई सी दैट ओ डिपार्टमेंट नंबर एंड डी नेम। सो 10 नंबर का डिपार्टमेंट है डेव, 20 नंबर का डिपार्टमेंट है क्यूए, और 50 नंबर का शायद डिपार्टमेंट नहीं है। कोई बात नहीं। अब अगर आपको समझ में आ गया कहां पर क्या करना है, तो कोई मुझको बताएगा? सबसे पहले मुझको बताओ, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के लिए आपको क्या करना है? काउंट। लेकिन काउंट करने के लिए क्या करना है? काउंट करने के लिए क्लॉज कौन सा यूज करना है? काउंट करने के लिए क्लॉज कौन सा यूज करना है? हाँ, ग्रुप बाय करना है, एंड ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर करना है। शायद आपको ये समझ में आता होगा। अगर आपको ये समझ में आता होगा, लेट अस गो स्टेप बाय स्टेप। सो सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर एंड काउंट ऑफ एम्प्लॉय नंबर, काउंट ऑफ एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम ईएम पेज। यहां पर वेयर क्लॉज की कोई जरूरत नहीं है। ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। ओके, आई हैव डन दिस, एंड यस इट इज टेलिंग मी दैट डिपार्टमेंट नंबर 10 के अंदर 2 है, 20 के अंदर 1 है, और 50 के अंदर 2 है। ओके, वेरी गुड। अब अगला क्वेश्चन ये है मुझको डिपार्टमेंट नंबर के करस्पॉन्डिंग मुझको डिपार्टमेंट ढूंढने हैं। तो मुझको क्या करना पड़ेगा? शायद मुझको ज्वाइन लगाना पड़ेगा, और वो ज्वाइन आपके सामने ऑलरेडी है ऊपर। अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने यहाँ पर ज्वाइन लगाया था, एंड वी हैव सीन दैट कि हमको यहाँ पर दोनों चीजें मिल रही है। एक क्या मिल रही है? डिपार्टमेंट नेम भी मिल रहा है, डिपार्टमेंट नेम भी मिल रहा है, और एम्प्लॉय भी मिल रहा है। सो आई एम एबल टू सी बोथ द थिंग्स। रुको जरा, सेमीकोलन तो देने दो, सेमीकोलन तो देने दो। यहाँ पर मुझको एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट मिल रहा है। ओके, वेरी गुड। अब मुझको क्या चाहिए? आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट ये है मुझको डिपार्टमेंट का नेम चाहिए, और करस्पॉन्डिंग टू द डिपार्टमेंट नेम मुझको काउंट चाहिए। तो सर क्या करूं? दोनों को कंबाइन करो। गो अहेड, कंबाइन करो। पहली बार में आप लोग गलत क्वेरी लिखोगे, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। फिर थोड़ा थोड़ा सिंटैक्स एक एक रिकॉल करेंगे और हम लोग लिखेंगे। सो मुझको क्या क्या चाहिए? फाइनल आउटपुट के बारे में सोचो। फाइनल आउटपुट ये है डिपार्टमेंट के अंदर का डिपार्टमेंट नेम चाहिए, और काउंट एम्प्लॉय के अंदर के एम्प्लॉयज का काउंट चाहिए। ओके, एम्प्लॉयज के अंदर का काउंट चाहिए। फ्रॉम फ्रॉम एम्प्लॉयज ई, ये ज्वाइन तो आपको करना ही है। गो अहेड, ज्वाइन किसके ऊपर करना है ये आपको पता है। यू हैव रिटन दैट। कैन आई राइट ओनली दिस मच ऑफ क्वेरी? सोचना जरा, इज दिस मच ऑफ क्वेरी इज वैलिड? नो। क्यों? व्हाई नॉट वैलिड? ये रूल याद होगा आपको, ग्रुप फंक्शन के साथ में आप लोग सिंगल कॉलम फेच नहीं कर सकते हो। ओ राइटिंग ग्रुपिंग ग्रुप बाय इज लेफ्ट। ओ व्हाई डोंट यू गो अहेड, हैव लुक एट दिस। यू सिंपली से ग्रुप बाय डी डॉट डी डॉट dptno, or you say e dot dptno. Wait for a minute. Sir, is it correct? Is it correct? No, it is not correct. Don't do. मैं बता रहा हूँ it is not correct. It is probably saying that it is wrong. Why it is wrong? A common sense. मैंने आपको बताया था, मैंने आपको कुछ रूल बताए थे। मैंने आपको रूल क्या बताए थे? जिसको आपको सिलेक्ट में लेना है, जिसको आपको सिलेक्ट में लेना है, वो चीज ग्रुप में होना जरूरी है। आपको ग्रुप बाय के बेसिक रूल याद है क्या? जिसको आपको सिलेक्ट में लेना है उसको आपको ग्रुप में ग्रुप करना पड़ेगा। अगेन अ बेसिक रूल, एंड एज अ बेसिक रूल, व्हाई डोंट यू फॉलो दैट रूल? व्हाई डोंट यू फॉलो दैट रूल? तो सर ये रूल फॉलो करेंगे तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा क्या? हो गया। हैव अ लुक एट दिस। और डेव के अंदर वी हैव गॉट टू एम्प्लॉइज, एंड क्यूए के अंदर वी हैव गॉट से वन एम्प्लॉई। और ये जो 50 नंबर का जो डिपार्टमेंट था, ये 50 नंबर के डिपार्टमेंट का प्रॉब्लम क्या था? ये उसका कोई नाम नहीं है, तो उसके अंदर 2 एम्प्लॉइज। दैट इज वेरी इजी। हैव यू अंडरस्टूड हाउ डू वी सॉल्व द प्रॉब्लम? करेक्ट। मैंने कहा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एक्वायर करो। टाइम लगेगा, इट्स ओके। और वैसे भी आपको जल्दी करके जाना कहां पर है? आज रात से शुरू करो, कल तक आपके पास टाइम है। आराम से सॉल्व करो एक एक असाइनमेंट। सर कल तक नहीं सॉल्व हुए, कोई बात नहीं, परसों सॉल्व करो।
हेलो, आराम से, टेक योर ओन टाइम, और जल्दबाजी मत करना, लेट इट टेक इट्स ओन टाइम, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं, जब लोग पहली बार टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो तो भागा दौड़ी मत करो, पहली बार समझ लो शांति से। सारे असाइनमेंट करने चाहिए ऐसा भी कोई रूल नहीं है, जितने हो सकेंगे, जितने आपको समझ में आएंगे, पहले उसके हिसाब से करो, यू विल ऑटोमेटिकली बी मोर कंफर्टेबल। सो मैंने सर सारे असाइनमेंट सॉल्व किए, समझ में एक भी नहीं आया, उससे अच्छा बेटर है कि हम लोगों ने कुछ असाइनमेंट सॉल्व किए, लेकिन जितने किए आई एम क्रिस्टल क्लियर विद दैट, दिस इज अ बेटर स्टेज। और वापिस से ये इंजीनियर्स को समझ में नहीं आता, बिकॉज इंजीनियर सर, हमने असाइनमेंट सॉल्व नहीं किए, हमारे मार्क्स जाएंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि इंजीनियर्स कभी नॉलेज के बारे में सोचते ही नहीं है, दे आर ऑलवेज थिंकिंग ऑफ कि उनको मार्क्स कैसे मिलेंगे। अब ऐसे लोगों के साथ मैं क्या बताऊं, मैं इंजीनियर नहीं हूं, आप किसी इंजीनियर से सवाल पूछना। ज्ञानेश्वर, आंसर इज वेरी सिंपल। जब आपको समझ में आए, ये ना आए सर ये लेफ्ट ज्वाइन क्यों करना है, इनर ज्वाइन क्यों नहीं करना है, गो अहेड, रिप्लेस लेफ्ट ज्वाइन विद द इनर ज्वाइन। जो आपको समझ में आता है वो करके देखो, यू सी व्हाट इज द रिजल्ट, एंड यू सी व्हाट इज द रिजल्ट, यू सी व्हाट इज द रिजल्ट, एंड यू रियलाइज दैट यार ये जो बचे हुए दो एम्प्लॉयज थे ये तो मिस हो गए। अब ये आपकी रिक्वायरमेंट है क्या, आपकी ये रिक्वायरमेंट है, देन आंसर इज वैलिड। अगर ये आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, देन गो बैक एंड मेक इट लेफ्ट आउटर ज्वाइन। आई होप ज्ञानेश्वर इट इज वेरी क्लियर। सो आपको समझ में नहीं आ रहा है, निकालो हु इज स्टॉपिंग यू, हु इज फोर्सिंग यू कि आपने इसको ऐसे ही करना चाहिए। इट्स वेरी इजी। इज दैट ओके? इज दैट ओके? द लास्ट पार्ट, लास्ट पार्ट, लास्ट पार्ट आई जस्ट टॉक अबाउट। सर मुझको ये सब कुछ नहीं चाहिए, ये मुझको सब कुछ नहीं चाहिए, आई एम ओनली लुकिंग फॉर, आई एम ओनली लुकिंग फॉर, मुझको सिर्फ वही एम्प्लॉय चाहिए। ये मुझको, ये जो मेरा पहला क्वेरी था, हेलो लुक एट दिस, ये जो मेरा पहला क्वेरी था कि जहां पर मुझको एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट नेम में डिस्प्ले कर रहा हूं, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट नेम में डिस्प्ले कर रहा हूं, ओ दैट इज गोइंग गुड आई नो, बट ये मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि ये मुझको करना है, ई नेम एंड डिपार्टमेंट नेम फॉर फॉर एम्प्लॉयज विथ एम्प्लॉय नंबर 2 and 3, दैट्स इट। ये मेरे को सारे एम्प्लॉयज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को सारे एम्प्लॉयज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझको सिर्फ उन एम्प्लॉयज में इंटरेस्ट है जिनका डिपार्टमेंट नंबर 2 और 3 है। ये मतलब कौन कौन, आई एम इंटरेस्टेड इन राहुल एंड नीलेश, मुझको सिर्फ उन्हीं दो एम्प्लॉयज में इंटरेस्ट है। अब मैं क्या करूंगा, एनी गेस? यहां पर तो मेरे को वैसे सारे दिखा रहा है, मुझको सारे में इंटरेस्ट नहीं है, मुझको सिर्फ किस में इंटरेस्ट है, मुझको सिर्फ उन्हीं दो लोगों में इंटरेस्ट है जिनका एम्प्लॉय नंबर 2 और 3 होगा। तो क्या करो, कुछ नहीं, नॉर्मल ज्वाइन लिखो, उसके जाके वेयर लगाओ, एंड जस्ट मेक इट क्लियर, E.empno इन 2, 3, या फिर empno is equal to 2 or empno is equal to 3, and that should give me the result. So instead of printing all, I just put a where clause and I given a result. बेसिक रूल याद रखना, पहले ज्वाइन लगाओ, ज्वाइन के बाद में जो वेयर क्लॉज लगाना है वेयर क्लॉज लगाओ, ग्रुप बाय लगाना है ग्रुप बाय लगाओ, ऑर्डर बाय लगाना है ऑर्डर बाय लगाओ, लिमिट लगाना है लिमिट लगाओ। सो जाए जो इससे पहले मैंने आपको ऑर्डर बताई थी, सबसे पहले सिलेक्ट, उसके बाद में वेयर, उसके बाद में ग्रुप, उसके बाद में हैविंग, उसके बाद में लिमिट, सॉरी उसके बाद में ऑर्डर, उसके बाद में लिमिट। जो हम लोगों ने रूल देखे थे वो रूल अभी भी सेम है, ओनली थिंग ये याद रखना, ज्वाइन सबसे पहले करना। सो इमीडिएटली फ्रॉम के बाद में पहले ज्वाइन करो। सो ज्वाइन का आपने लेवल ऊपर ले लिया, और बचे हुए सारे आपने उसके नीचे लगा दिए। सो इट कैन बी लाइक वेयर क्लॉथ, उसके बाद में देयर कैन बी ग्रुप बाय, देयर कैन बी हैविंग, देयर कैन बी ऑर्डर बाय, देयर कैन बी लिमिट, एंड दिस वे इट विल कंटिन्यू। आप लोग सब कुछ एक साथ मिक्स कर सकते हो, डोंट डू इट जस्ट फॉर सेक ऑफ डूइंग इट, read the problem statement, if problem statement has got a requirement then do it, if problem statement doesn't have a requirement don't waste your time। क्वेरी सिंटैक्स पढ़ने की कोशिश मत करो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ो, उसको समझो, जो रिक्वायर्ड होगा वो यूज करो, दैट इज दिस क्लियर टू एवरीवन? जो मैंने अभी लास्ट वाला पार्ट बताया जॉइंस खत्म होने के बाद में जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा है, आई आई विश उतना वाला पार्ट आप लोग उतना वीडियो वापस से एक बार देखना बिफोर
you go for tomorrow's lab, before you go for tomorrow's lab and before you start solving the problem. आज के लिए इतना काफी है, हम लोग अभी यहाँ पर रुक रहे हैं. इसके अलावा जिसको किसी को कुछ क्वेश्चंस होंगे, यू कैन वेट. जिनको क्वेश्चंस नहीं है, दे कैन लीव. बाय बाय. कल हम लोग मिलेंगे. यू वी कैन स्पेंड लिटिल मोर टाइम ऑन द जॉइंस टुमारो अगेन. हम लोग थोड़ा सा जॉइंस और थोड़ा पढ़ेंगे, कुछ और एग्जांपल्स लेंगे इफ इट इज नीडेड, और उसके बाद में हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे. राइट? डोंट वरी. बाय बाय.